So let's start the session. And after giving a brief, I'm starting the content. The first thing which I want to make you learn. So in a company, we know it's a separate legal entity. So here there are two kind of people. One is BOD and one we call it as members. So let me make you understand the relationship between these two. So these people are eligible to appoint or remove the board. Do you agree? These people cannot manage company. Beta, सुनो मैंने क्या बोला? Members are not having a power to manage the affairs of the company. Members are empowered to appoint or remove the board who are empowered to manage the affairs of the company. तो आप कहोगे मेंबर तो ओनर है लेकिन धंधा वो नहीं कर सकता. धंधा कौन कर सकता है? बीओडी. ठीक है सर, मुकेश भाई धंधा करते हैं. मुकेश भाई तो धंधा करते हैं, मुकेश अंबानी. तो साक्षी, मुकेश अंबानी एज अ मेंबर is not entitled to manage the affairs. Mukesh Ambani as the director of the board is entitled to manage the affairs. But if you are a member and if you want to be a part of management, you need to come where? Into the board. If you are not into the board, you are just not having a right to comment in day-to-day affairs. What the right you have? So I have a right to remove or add someone, but I don't have a right to manage myself. Are we clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Be a board. Thank you so much. Can a member be into the board? Yes, sir. Can a non-member be into the board? Bolo, yes or no? Can a non-member can be into the board of the company? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. आपके प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी के बेसिस पे आप बोर्ड में जा सकते हो. You don't need to be a member to be into the board. Are we clear with this? Yes, sir. Anyone have a doubt till now? Please tell me. No. Number 2. Sir, मीटिंग्स कंपनी में होती होगी, राइट? तो अगर बीओडी की मीटिंग हो रही है, उसे हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा? विच मीटिंग? बोर्ड मीटिंग. और अगर मीटिंग किसकी हो रही है बेटा? इसे हम कौन सी मीटिंग कहते हैं यहाँ पे? जनरल मीटिंग. अ कॉमन टर्म विच आई हैड टू मेक यू एक्सप्लेन. बोर्ड बीएम लिखा होगा तो हम क्या मानेंगे? इट्स अ बोर्ड मीटिंग. जीएम तो हम क्या मानेंगे? इट्स अ मीटिंग ऑफ मेंबर्स. आर वी क्लियर? Yes, sir. बस, थैंक यू सो मच. आपको कष्ट दे रहा हूँ बट प्लीज एक्टिविटी रखना. आगे जाते हैं हम लोग. 7. क्यों वीडियो ऑफ हो गया? चाय पीने बैठ गया अक्षर? अच्छा, मारूंगा तुमको पकड़ के. तुम लोग क्या लगता है कि मेकअप कम हो गया तुम लोग का, इसलिए बंद कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, चलो शुरू करते हैं. See guys, I have some strict rules and all the rules have been made for your betterment. For your betterment. हम चाहते हैं कि हमारा सेशन एक्टिव रहे, तो मुझे आपको देखना जरूरी है, राइट? ध्रुवी, साक्षी, ध्रुति, आई एम सो सॉरी, ध्रुति. ध्रुति मैडम, आप थोड़े नर्वस हो कि हम थोड़े स्ट्रेस में हो? Yes, sir. यस सर. व्हाई सो मैडम? I think I had a talk to I talked with you yesterday, right, Dhruti? मैडम को ऑडियो नहीं आया. चलो ठीक है मैडम, ऑनर दोगे. जीएम के आगे पार्ट में आता है. 2 प्रकार के जीएम होते हैं. एक को कहते हैं एजीएम और सेकंड को कहते हैं ईजीएम. सेशन आज का जो है वो इसी बेसिस पे आपको लिखना कुछ नहीं आज चाहिए, तो मैं ये पीडीएफ दे दूंगा आपको. एजीएम और ये ईजीएम, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ जीएम्स. एजीएम मतलब क्या सर? एजीएम मतलब एनुअल general meeting. It is been done only once in a year. Only once in a year. तो सर एजीएम मतलब क्या? सुनो, ये एजीएम है, ये एजीएम है.
अगर दो एजीएम के बीच में आपको मीटिंग बुलानी पड़े फॉर सम रीजन विच यू कैन नॉट वेट टिल नेक्स्ट एजीएम, तो उसे हम क्या कहेंगे? एजीएम कहेंगे. मतलब a meeting between two AGMs is called dash. A meeting between two EGM. AGMs is called dash. AGM. Sakshi, are we clear? Yes, sir. AGM is something which comes as annual meeting done once in a year, and EGMs are something to be done between two. जब हम लास्ट में एजीएम खत्म हो चुकी है और नेक्स्ट एजीएम तक हम रुक सकते नहीं है, तो हम क्या बुलाएंगे? एजीएम बुलाएंगे. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू. मूविंग फर्दर, Yes, sir. तीसरे पार्ट पे, What does E Sir. stand for in EGM? ऑर्डिनरी, माय डियर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. Okay, sir. E stands for extraordinary. ठीक है, आई एम सो सॉरी, मैंने वो बोला नहीं था. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. ठीक है, हाँ सर. जाइए આપણે मूविंग फॉरवर्ड. Yes sir. Yes, sir. नेक्स्ट वर्ड आता है लॉ में, कॉमन वर्ड, दैट इज कॉल्ड बिजनेस. तो व्हेनेवर मेंबर्स मीट they discuss a business. They discuss a business. तो बिजनेस डिस्कस करने को यहां पे कहा जाता है ऑर्डिनरी बिजनेस, और समथिंग कॉल्ड विच बिजनेस बेटा? ऑर्डिनरी एंड स्पेशल बिजनेस. तो पूरे कंपनीज एक्ट में सिर्फ दो टाइप्स के बिजनेस है, सिर्फ दो टाइप के. कौन से? ऑर्डिनरी एंड Special. सिर्फ दो. पूरे लॉ के अंदर इतने ही बिजनेस आते कंपनीज एक्ट के अंदर. ऑर्डिनरी का मतलब क्या और स्पेशल का मतलब क्या? व्हाट वी हैव टू लर्न. डू यू एग्री? बात को समझना, बात को समझना. अगर आप एजीएम कंडक्ट कर रहे हो, विच मीटिंग आर वी कंडक्टिंग गाइस? एजीएम. कशिश, इस एजीएम के अंदर अगर आपने ये 4 बिजनेस डिस्कस किए, अगर आपने ये 4 बिजनेस डिस्कस किए, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? कौन सा बोलूंगा? Ordinary. उसे मैं ऑर्डिनरी कहूंगा. तो सर ये 4 कौन है, बता दो ना सर. सर पहला काम, डिविडेंड को क्या करना बेटा? डिक्लेयर. कंपनी अपने मीटिंग में डिविडेंड को डिक्लेयर करना चाहती है. नॉर्मल है ना, एवरी ईयर डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं. विच बिजनेस गाइस? ऑर्डिनरी. Ordinary. तो कंपनी अपने अकाउंट्स को अप्रूव करना चाहती है. अकाउंट्स अप्रूवल्स. सो नॉर्मल है, हर एजीएम में अकाउंट अप्रूव होंगे, रिलीज होंगे, फाइनेंशियल्स बाहर आएंगे. डू यू एग्री? विच Yes, बिजनेस गाइस? विच Yes, बिजनेस? ऑर्डिनरी बिजनेस. नंबर 3, अपॉइंटिंग और रिमूविंग directors or appointing or removing auditors. Last 2 points. मतलब Last points were to appointing or removing directors of the company or appointing or removing auditors of the company are also called as dash. Which business? Ordinary. ordinary. Ordinary business. So there are 2 preconditions for ASA for ordinary. That is, you know what? One is it has to be in which meeting? AGM. And this has to be which 4? This 4. In AGM, this 4 is always ordinary. Apart from this, अगर कुछ कंडक्ट किया जा रहा है तो सब क्या है बेटा? Special business. I'll elaborate more. जैसे कि सुनो, अगर एजीएम चल रही है बेटा, एजीएम, और एनी other business except 4, जो हमने 4 डिस्कस किए ना यहाँ पे, इसके अलावा एजीएम में कोई भी अलग मैटर डिस्कस किया गया, जैसे बायबैक, मर्जर्स, अमालगमेशंस, इशूइंग शेयर्स, ऐसा कोई भी मैटर जो इस 4 के ऊपर है, उसे हम क्या बोलेंगे? Special. Business. स्पेशल बिजनेस. नंबर 2, ईजीएम में
EGM के अंदर all business are special business. Now, I have some activity for you. I'll be asking you some questions and you have to answer me whether it's ordinary or special. I'll be giving you 1 minute to just look into the chart, have a look to it, and then I'll ask you the questions. Okay? It's okay if you get wrong, but it's important you contribute. And now time starts now. Rishabh, Dhruvi, Siddhi, Harshal, Kushi, Vishrudhi, be active. Yes. Manan, सर yes. ordinary में second point क्या है? Approval of accounts. अकाउंट्स के अप्रूव करना, बोर्ड ऑफ रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट अप्रूव करवाना, बोर्ड रिपोर्ट अप्रूव करवाना कि भाई हमारा प्रॉफिट ये हुआ है, हमारा इस बार का ग्रोथ इतना हुआ है एंड ऑल दैट. Done, sir. Done. So I have given you 1 minute, every one of you, it is done. Now let me ask a question to Samriddhi. Beta, you have to answer this. If a company declares dividend in AGM, which is the business? Ordinary. Be louder, beta. If a Sir, company can you hear me? declares dividend in AGM, Ordinary business. दिल तोड़ दिया बेटा आपने, दिल तोड़ दिया मेरा. कशिश, Yes, sir. if a company declares dividend in AGM, Ordinary business. AGM. की दिल है मेरा, 2 बार क्यों तोड़ रहे हो? मैंने बोला कि EGM में Sir, special business. Sir, I heard AGM. स्पेशल बिजनेस. डू यू एग्री? और क्या मैंने AGM कहा था या EGM सुना आपने? क्या सुना था आपने? AGM ही सुना. Sir, AGM सुना. AGM is sound किया. ओके, मेरा तो फिर मेरा गलती है क्योंकि मैं बोल रहा था EGM और आपको सुनाई दे रहा था AGM. तो भी ए का इशू था, मैंने बोला था EGM. एनीवेज, तो अच्छा हुआ मेरे को दिल नहीं टूटा मेरा. ठीक है साक्षी, इट्स द क्वेश्चन इज टू यू बेटा. If a company approves accounts on the date which is not, if the company is approving accounts not in its annual general meeting but keeps a new meeting for the same, तो वो बिजनेस कौन सा माना जाएगा? Sir, special business. स्पेशल बिजनेस माना जाएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सिद्धि हियर. सिद्धि, you tell me in which situation business will be called as ordinary? So, Jabi, where there will be dividend will be provided in AGM, and there will be accrual. Like I was and I guess Appointment, I was not present during ordinary business experience. appointment and removal of directors, appointment and removal of auditors, Okay. approval of accounts and declaring dividend. Right, Asta? Huh. Sir, in case Okay. where a company does activities prescribed here, A, B, C, D, in an AGM, we call it as ordinary business. And if the activity is been done in an AGM, it's always special. And any activity done other than this 4 in AGM is also called special business. Do we agree or not? Yes, sir. Yes, sir. The question comes up here is, Vishrudhi, sir, why are we splitting? Harsh, why are we splitting the business into 2 kinds? Ordinary and special. ऐसा क्यों किया गया है? That has to be the thought. Do you agree? Imagine करो मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया होता और अब हम क्या शुरू करते?
पढ़ना तो क्या होता आता कंपनी हैज टू टेक इन दिस केस कंपनी हैज टू डिस्कस अ मीटिंग व्हिच विल बी टर्म अप्रूविंग अ स्पेशल बिजनेस एंड हम कहाँ अटक जाते हैं विद द वर्ड स्पेशल बिजनेस। ऐसे बहुत हम आगे सुनने वाले हैं, अभी हम फंस जाते हैं। एनीवेज तो शुरू करते हैं। और मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है ऑर्डिनरी प्रेशर को अलग करने का रीजन क्या है, किसी को सोच? સર કેમ કે ઓર્ડિનરી બિઝનેસમાં કોઈ પણ બિઝનેસ હોય ને બધામાં 4 રૂલ્સ તો ફોલો થવાના જ છે, પણ સ્પેશિયલ બિઝનેસમાં હર એકની એક્ટિવિટી સેમ ન હોય। बोल तो हर बार गुजराती में बोलता है। दूसरा ये कि आंसर रॉन्ग है कि एनीवन एल्स वांट्स टू आंसर दिस? कशिश, समृद्धि? Sir, can you repeat the question? Question is अथर्वा कि why have they splitted the business into two parts, ordinary and So because दोनों के compliances अलग-अलग होंगे compared to their workings and their characteristics. very good, now you're quite nearby to it। दोनों The के basic compliances में कुछ फर्क हो सकता है। True, the basic to make the course of transaction and actions and basically taking making decisions way easier, because दोनों का तो सर ये बहुत different रहेगा ना, decision taking and all, that is why. Sir, to know the nature of business. I'm not able to hear you properly। Sir, to know the nature of business. ठीक है, ओके ओके। नाउ आप लोगों ने ट्राई किया ना, इसका समरी तो यही जो आस्था ने कहा, दैट इज कंप्लायंसेस को समझना। बट लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज एक्चुअली। Listen, sir, law wants you to understand that when a common investor was invested some money in the company, 500 से लिया रिलायंस इंडस्ट्रीज का, क्यों लिया है? उसको फर्क जियो से नहीं पड़ता, उसे फर्क नेटवर्क से नहीं पड़ता, उसको फर्क किससे पड़ता? पैसा से पड़ता है। बड़ा भाव बढ़ना चाहिए। डू यू एग्री? Yes, sir. कुछ समझ में नहीं आता कि आईपीओ के पहले क्या होता है, कॉर्पोरेशन कैसे, कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसे लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जब वो एजीएम में वन से एजीएम ना हर्ष, वन से एजीएम ना तीनों केजीएम में डिविडेंड की बात होगी, मुकेश भाई बोर्ड अप्रूवल की अकाउंट्स अप्रूवल करके बोलेंगे प्रॉफिट इतना कमाया कंपनी ने, अगले साल हमारे डायरेक्टर ये हो जाएंगे और ये ऑडिटर हमारे थे, सर अगले साल ये हो जाएंगे। ये कॉमन है जो सबको पता है होने वाला है। इफ आई वांट टू मेक यू समझ इन अ सिंपलर वे, व्हेन यू अटेंड अ सोसाइटी का एजीएम, तो आप जाते हो, इफ यू गेट अ नाश्ता पानी डिनर लंच एक्सेट्रा, तो आपकी इच्छा हो जाती जाने की, पर जाके सुनते क्या हो, इस बार सेक्रेटरी ये हो जाएंगे, वो नहीं रहेंगे, इस बार का हमारा लॉस इतना हुआ है, लेट्स इंक्रीज मेंटेनेंस दिस ईयर, लेट्स हैव अ पिकनिक दिस ईयर, ऐसा कुछ ना कुछ टाइम पास होता है। वो क्या है? कॉमन चीज है। लॉ कहता है जो चीजें एक्सपेक्टेड है, जो चीजें एक्सपेक्टेड है उसके लिए आपको कम्युनिकेट अलग से करना जरूरी नहीं, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है। तो व्हाई इट इज नॉट ऑर्डिनरी? बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड टू बी नोन बाय द इन्वेस्टर। ये होने वाला है। कशिश, डू यू एग्री? Yes, sir. व्हाट अबाउट दिस? लॉ बोलता है कि जब आप लोग क्या दोगे, नोटिस दोगे कि आपको मीटिंग में आना है, तब आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अगर आप उस मीटिंग में जो बिजनेस ट्रांजैक्ट कर रहे हो वो कौन सा है? स्पेशल बिजनेस है। मतलब हर्ष कि अगर बाई चांस मैं अगर बायबैक की बात करूंगा, मैं अमालगमेशन की बात करूंगा, कंपनी अक्वायरिंग अदर कंपनी की बात करूंगा, मैं इक्विटी इशू करने की बात करूंगा, मैं डिपॉजिट इशू करने की बात करूंगा, मैं लोन लेने की बात करूंगा, मुझे जितने भी प्रकार के बिजनेस डिस्कस करने हैं, अगर वो ऑर्डिनरी नहीं है, अगर वो ऑर्डिनरी नहीं है, तो हाउ विल इन्वेस्टर नो को करना क्या है? You need to give him some more explanations to it. Do you agree?
इसके अंदर नोटिस के अंदर क्या होता है? डेट, डे, टाइम एंड एजेंडा. डू यू एग्री? इतने बजे यहाँ पे आना है और ये टॉपिक हेड है. एजेंडा का हेडिंग समझ में आता है, उसका एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आता है कि वो क्यों करना है. डू यू एग्री? Yes, sir. लॉ कहता है आप इन्वेस्टर को भेज रहे हो मीटिंग के अंदर, ये बोल के हमें बायबैक करो. अरे भाई बायबैक क्यों करना है? फायदा क्या होगा? नुकसान क्या होगा? कितने शेयर जाएंगे या आएंगे? अमालगमेशन क्यों करना है? मर्जर क्यों करना है? तो यू नीड टू गिव सम स्टेटमेंट्स टू द सेम. दैट इज कॉल्ड compliances of law. What Asha said. It means what? कि whenever company intends to move a business that is special in nature, company has to give dash explanatory statement along with dash notice. So whenever I'll be explaining you some transaction in the chapter, उसमें क्या लिखा जाएगा? वर्ड, ये वर्ड. The company should attach dash what? Explanatory statement. तब आपको समझ में क्या नहीं आएगा? So ये क्या है? तो हमने यहाँ पे सीख लिया पहले से कि वो क्या है बेटा? स्पेशल बिजनेस के साथ जब जब होगा बिजनेस कौन सा? स्पेशल. तब तक क्या साथ में क्या होगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. तब तक होगा साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. एक एग्जांपल दूं मैं आपको इसका? यस सर. एग्जांपल दो लूंगा, एक लाइव एग्जांपल, एक मैं आपको ऑनलाइन दिखाऊंगा. सुनो, अगर हमने कहा कि हमारे आप तो मेरे एम्प्लॉइज हो, आई सेड कि आई कंपनी इंटेंड्स टू गिव शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉइज एज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और स्वेट इक्विटी प्लान. तो सर क्या ये ऑर्डिनरी है? नहीं सर, ऑर्डिनरी में ये चार नहीं आते. तो ये क्या हो गया? स्पेशल. अब कंपनी देना चाहती है एम्प्लॉइज को, तो मेंबर्स को किसको पूछना पड़ेगा बच्चों? They need to ask their members. Do you agree? Yes sir. Yes, sir. Of the moment they need to ask the members, it means they need to take approval of members. To take approval, they need to call a meeting, beta. To call a meeting, they have to give a notice, beta. And to give a notice, they have to attach what? Explanatory. Because it's a special business. Do you agree? अब मेरी बात को सुनना. इस ES में क्या लिखा जाएगा हर्ष? कंपनी कितने शेयर्स एज एम्प्लॉयज ऑप्शन प्लान देना चाहती है, उसका नंबर बताओ. कंपनी कौन से लेवल के एम्प्लॉयज को ये देना चाहती है, जिनका पैकेज कितना है? 6 लाख के ऊपर, 10 लाख के ऊपर, 20 के ऊपर, 50 के ऊपर. कंपनी कौन से प्राइस पे देना चाहती है? सस्ते में देगी ना कंपनी. कुछ कंपनी हैज टू गिव इट अ डिस्काउंट प्राइस, फ्री, व्हाटएवर. प्लीज टेल दैट. इससे कभी फायदा क्या होगा वो बता दो. और इससे कंपनी का इन्वेस्टमेंट क्या होगा वो बता दो. इससे कंपनी के शेयर्स पे क्या इंपैक्ट आ सकता है वो बता दो. हेलो हेलो हेलो. मतलब एवरीथिंग रेलेवेंट टू मेक अ डिसीजन शुड बी अ पार्ट ऑफ डैश एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. डू वी एग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. We have understood a very important concept to be remembered till lifetime. Why you need explanatory statement, guys? क्या मैं रिपीट करूं कि समझा? प्लीज कंफर्म. समझा सर. समझा, sir. एक चीज मैं बताऊं यहाँ पे. देखो एक और चीज बोल देता हूँ. ऐसा फर्स्ट लेक्चर, मुझसे शर्माओगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे. मैंने पहले भी बच्चों को बोला है. तो मुझसे मत शर्माना. आपको डाउट है पूछ लो. आपको शर्म आती है फिर भी पूछ लो. कि शर्म रखोगे तो फंसोगे. ऐसा हो सकता है इसको समझ में आया तो आपको समझ में नहीं आया. तो उसमें मैं तो भगवान नहीं, मुझे पता होगा. तो अगर आप मुझे बता दोगे तो आपको भी इजी हो जाएगा और मुझे नहीं लगेगा कि मैंने मेरे स्टूडेंट को पढ़ाया नहीं. अभी क्लियर? तो हैव दैट. दैट इज आई वांट टू कीप योर वीडियो ऑन बिकॉज़ व्हेन योर वीडियो इज ऑन आई कैन एट लीस्ट सेंस इट कि इज योर ब्रेन कंफ्यूज्ड और नॉट. बट आई कैन सी ध्रुति टिल नाउ कि ध्रुति बेटा को मुझे लगता है देख के मैडम कंफ्यूज स्टार्टिंग से है. ध्रुति इज इट? No, sir. नो सर. No, sir. सर आप एक बार वो पूरा रिपीट कर सकते हो क्या? हाँ श्योर. बेटा तेरा आवाज वापस तो आया. तूने कहा रिपीट करने को बोला ना? हाँ सर. हाँ तो मैंने ये बोला. देखो अभी बाजार की हिम्मत बढ़ी ना, कुछ मैंने बोला था और किसी ने आंसर देने की कोशिश की. सो दिस व्हाट आई वांट. ठीक है अभी सुनो. मैंने ये बोला आ गया रे वो. ठीक है मैंने बोला कि बिजनेस प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल. ऑर्डिनरी मतलब 4 चीजें एजीएम के अंदर होती है, उसको ऑर्डिनरी कहते हैं. जैसे कि अकाउंट डिविडेंड डिक्लेयर करना, अकाउंट अप्रूव करना, अपॉइंटमेंट रिमूवल ऑफ डायरेक्टर या फिर ऑडिटर. ये 4 चीजें एजीएम में होती है तो उसे ऑर्डिनरी कहते हैं. आते हैं आगे. तो एजीएम के अंदर कुछ और हुआ तो सब स्पेशल. सब स्पेशल मतलब कि अगर एजीएम के स्पेशल क्या मतलब ये है, एजीएम में इसके अलावा कुछ भी हुआ तो स्पेशल है.
और अगर वो ईजीएम था तो हर चीज ईजीएम में तो स्पेशली होती है, क्योंकि आपने ईजीएम में नहीं की। आर बी क्लियर? आगे बोला हमने कि जब जब होगी चीज स्पेशल, जब जब होगी चीज स्पेशल लगेगा साथ में क्या? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जिसके अंदर क्या लिखेंगे हम हमें जो रेजोल्यूशन पास करना है उसके बारे की डिटेल्स हमें यहाँ पे मेंशन करनी है, जैसे कि क्यों करना है, फायदा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, किसको नुकसान होगा, एंड ऑल दैट इज हैज टू बी प्रेजेंट हियर। आर बी क्लियर? अथर्व, आर यू गेटिंग माय बेस हियर? अथर्व अगेन? यस सर। ठीक है बेटा, कीप योर वीडियो ऑन। सर मैं खाना खा रहा हूँ। खाना खा ले, ठीक है। अगले दिन से खाना का टाइमिंग थोड़ा शफल कर देना, और आपका खाना 1 बजे के पहले पूरा खाने वाला खत्म करके वॉक करके आ जाना, ठीक है। तो थोड़ा और रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। और आप चाहोगे तो उसके बाद सम डे लेटर इफ यू वांट कि आई शुड कीप इट फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं, एवरीवन अग्रीज टू इट। 1 to 4 is something a standard element के what we normally do, but I'm always open if majority of them agrees to something same। खाना का टाइम मेरा भी नहीं खत्म हुआ है, मुझे आदत डालनी पड़ेगी 12:30 बजे खाना खाने आप भी सर खा लो सर, चाहिए मैं खा लूंगा, लेकिन आज तो नहीं खा सकता ना भाई, ठीक है। तुम लोग के लिए लेक्चर है, मेरे लिए लेक्चर नहीं है ये, ठीक है। मेरे लिए बहुत कुछ है ये। सुनो, I'm sitting from 11 AM onwards just to wait for the session। 11 बजे से बैठा हूँ मैं लैपटॉप के सामने, and just thinking कि तुम, it's like going to a picnic, right? Once you are going for a picnic, आप 5:30 बजे उठ जाते हो, जवान है। So that's how it happens to a teacher when he's teaching to his students। Anyways, सुनो मेरी बात, अब मैं क्या बोल रहा था रे? हाँ, एक एग्जांपल लाइव दिखा रहा था मैं तुमको, देखो। भाई क्या हुआ, देखो। देख भाई, मैंने हर्ष क्या खोला, मैंने नोटिस खोला क्या खोला? नॉर्मली नोटिस खोला। ये ओरिजिनल नोटिस है कौन सी मीटिंग का? टाटा मोटर्स की मीटिंग का, राइट? यस सर। अब नोटिस में पहले उन्होंने क्या लिखा है? ऑर्डिनरी और स्पेशल। अब उनको क्या करना था? उनको डिविडेंड देना नहीं था, इसलिए उन्होंने कौन से 3 मैटर लिखे? अकाउंट्स को अप्रूव करना और डायरेक्टर्स की रिटायरमेंट की बात की, जो उनको करनी थी उस पर। डू यू एग्री? यस सर। अलावा कि हर मैटर को क्या माना गया? स्पेशल। इसके अंदर कोई एक चीज मिलेगी, बताए? ત્યાં આગળ 4th point છે ને, एक मिनट એમાં પણ ડાયરેક્ટર અપોઇન્ટ કરે છે ને। एक मिनट उभो रहे बेटा, तने एक मिनट उभो रहे, छुपा छुपी नहीं रहा, शांति रहा। हाँ, मुझे कुछ दिखाना है। तुम लोग डे 1 पे हो, टेक्निकल मत सोचना तो तुमको आई हैव टू एक्सप्लेन। ये सब चीज आपके कंटेंट में आगे है। तुमको क्या दे रहा हूँ आज बेटा? एक स्टार्टर दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? ये नोट्स नहीं है, किसी का एजीएम रिपोर्ट है। रुक जा, यस, मैं यहाँ पे आना चाहता था। ये क्या है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्या लिखा है? Portion section 102 of the Act gives your under sets out all the material facts relating to what? Special business. Have you written your ordinary business? No. No, sir. They only use the word. Tata Motors has only used the word. Or Special Special business. Remuneration. Relating to what? Remuneration discussion to the directors. मतलब डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन, उसके परक्विजिट, सिटिंग फीस, वो सब चीजों के लिए इट कैन बी व्हाट? स्पेशल। अपॉइंटमेंट की बात नहीं हो रही। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. व्हाट हैपेंस हियर? सुनो, अब हर एक कंपनी, एशियन पेंट्स, रिलायंस, इन्फोसिस, सारा ऑल लिस्टेड कंपनीज का ईएस, एजीएम, नोटिस, ये सब कॉमन चीजें हैं जो हमें सीखनी है, क्योंकि जब भी आप कोई रिपोर्ट पढ़ोगे आपको ये चीजें नॉर्मली मिलेगी। और पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट रेलेवेंट है फॉर योर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट टू इट ऑल्सो। तो मैं आपको जो भी आप पूछोगे ना, आपको ऑनलाइन डालोगे, उसमें रिपोर्ट्स मिलेंगे, कंप्लायंसेस के पार्ट मिलेंगे। क्योंकि हम ये क्यों कर रहे हैं पता है हर्ष? हमें इसका कंपनी ऑडिट करना है। ध्रुव, क्या करना है? कंपनी ऑडिट। व्हाट इज कंपनी ऑडिट? आस्था, वी नीड टू चेक कंप्लायंसेस ऑफ लॉ एज विथ रिस्पेक्ट टू द कंपनीज एक्ट, द कंपनी हैव फॉलोड इट और नॉट। अगर कशिश हमें ये जानना है कि कंपनी ने लॉ फॉलो किया है कि नहीं,
तो पहले हमें खुद लॉ फॉलो करना पड़ेगा, मतलब खुद लॉ को समझना पड़ेगा। अगर हम लॉ को समझ पाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे ध्रुति, हम खुद वेरीफाई कर पाएंगे कि क्या कंपनी ने स्ट्रिक्टली फॉलो किया है वो नॉर्म्स के नहीं। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं ऑडिटर हूँ, आई विल चेक द नोटिस, नोटिस के लिए क्या ऑर्डिनरी बिजनेस को स्पेशल को अलग अलग किया था कंपनी ने कि नहीं, क्या उसके लिए नोटिस के साथ ये दिया था कि नहीं, क्या ये इसके अंदर ओरिजिनल फैक्ट्स थे कि नहीं, क्या ये इनेबल करेंगे मेंबर्स को अंडरस्टैंड द मैटर और नॉट। ये सब चीजें क्या है, ये आपको वेरीफाई करनी है एज एन ऑडिटर। आर वी क्लियर? क्योंकि हम Yes, किसको sir. प्रोटेक्ट करेंगे, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। अभी आगे जो ये बात पे ध्यान दे, यहाँ पे सुनो, कोई भी बिजनेस जब आप पास करोगे, जब आप अप्रूव करोगे, तो उसे लॉ क्या कहता है, उसे लॉ नाम देता है कौन सा बेटा, Resolution. रेजोल्यूशन। तो जो बिजनेस हमने प्रपोज किया कि हमें ये करना है, ये करना है, और जैसे ही वो रेजोल्यूशन पास हो गया ना, तो इट इज एक्सेप्टेड, अप्रूव, और फेल हो गया तो समय वो हम कंपनी वो कर सकती नहीं है। डू यू एग्री? तो हाउ इज रेजोल्यूशन पास्ड, हाउ इज रेजोल्यूशन पास्ड, कंपनी के मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास करे तरीका क्या होगा, क्या होगा, बाय डैश, बाय Voting. Voting. डू यू एग्री? Yes, sir. वोटिंग। Yes, sir. बाय वोटिंग अगर ये मैटर पास होने वाला है तो who is going to vote? Sir, you will be telling me members are going to vote. Do you agree? Yes, sir. Members. Yes, sir. यहाँ पे कौन? Normally what? Equity shareholder. Do you agree? They are going Yes, to sir. vote. Now the question comes up here is to every one of you. There are 1,000 members in a company. How many members in a company? 1,000. मीटिंग बुलाई, क्या बुलाई? मीटिंग बुलाई, तो अथर्व 700 लोग मीटिंग में आए। कितने लोग मीटिंग में आए? 700. तो बाकी 300 घर पे रहे। आज कौन जाए, कंटाला आता है या दिमाग खाता है वो हर बार, नहीं जाने का है। मुझे क्या फर्क पड़ता है। ऐसा आर वी रियली इंटरेस्टेड टू अटेंड एज एन इन्वेस्टर? डेफिनेटली नॉट। यू नो व्हाई? वी आर कॉमन इन्वेस्टर, वी आर नॉट केयरिंग अबाउट ऑल। हमको क्या पता वो क्या बेचेगा, हमको क्या पता वो फ्यूल डालेगा कि कौन सा प्रोसेस डालेगा, हमको क्या समझना। कैन वी एडवाइस धीरू भाई अंबानी, सॉरी मुकेश अंबानी, मुकेश भाई वो नेटवर्क का इशू है ना, आई कैन सजेस्ट यू कैन अपग्रेड बाय दिस एक्सवाइजेड टेक्निक। ऐसा आई टेल यू, फाइबर के अंदर ना आप प्राइस कम करो तो धंधा बहुत बढ़ेगा। हु आर वी टू डू दैट? डू वी हैव द नॉलेज? आंसर इज नो। तो 700 लोग फिर भी आ गए नाश्ता पानी करने। हर्ष, नाश्ता अच्छा मिलता है रिलायंस की मीटिंग में, जोरदार प्योर वेज खाना मिलता है, एक नंबर खाना। तो आ गए ये लोग, 700 लोग आए, और ये ना, अरे यार 700 लोग आए और 700 में से हर्ष, ये हॉल है, क्या है ये हॉल, द एजीएम हॉल, और ये यहाँ पे क्या है भाई, ये ओपन कैंटीन लॉन एरिया जहाँ पे नाश्ता पानी चलता है। तो ये 300 लोग यहाँ पे ही रह गए हर्ष, कितने? 300. तो बाकी 400 कहाँ पहुंच गए? AGM hall में. मुकेश भाई को देखने। अब मेरी बात सुनो, ये 400 लोग में से भी गर्लफ्रेंड वाले लोग भी, कपल भी थे छोटे मोटे, जो चिटर चिटर कर रहे थे। और फाइनली कितने लोगों ने वोट किया? 300. सर कहां से कहां घुमा रहे हो? 1000 लोग का मीटिंग था, मेंबर 1000 मेंबर्स का कंपनी था, 700 लोग मीटिंग में आते हैं, 3 तो नाश्ते से बाहर ही नहीं निकल पाते। 3 लोग नाश्ते से बाहर निकल पाते ही मोह माया, आने की मोह माया, वहीं पे घुस गए। ऐसा होता है ना शादी में, जब अपन जाते हैं ना तो कोई पूछता है कि भाई लड़का लड़की कैसे दिख रहे हैं, देखा ही नहीं किसी ने, अपना तो कहाँ पे सीधा मैटर, सीधा टू द फूड काउंटर, पानीपुरी अच्छी है। बाकी ये नहीं पता है कि दूल्हा दुल्हन लगते कैसे, वो हमें पता ही नहीं है सर। क्योंकि हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्ट सिंपल है सर, खाना, शादी मतलब खाना खाना। ऐसे एजे में भी ऐसे लोग होते हैं आस्था, जो क्या करते हैं सर, खाना खाने जाएंगे, नाश्ता पानी मिलेगा, बाकी वोट में कुछ फर्क। हमारे पास वोट कितना है, अपनी औकात कितनी? अगर आपके पास 1000 शेयर भी लेके बैठे हो ना, तो आपकी औकात क्या पता है? मेरी औकात, चलो आप भड़क जाओगे मुझ पे। 0.000000001% भी मेरा शेयर नहीं, मैं क्या कर लूंगा कंपनी वोट करके? साक्षी बोलो, दिस इज माय वोट परसेंटेज, इवन इफ आई हाउ मेनी शेयर्स,
50 शेयर। मुकेश भाई हैव 64 करोड़ शेयर अगेंस्ट मी। मुकेश भाई ने कुछ बोल दिया 64 करोड़ शेयर अगेंस्ट मी, मुझे पास कितने शेयर? 1000 शेयर। क्या होगा उसमें? मेरे को मैं वोट करेगा, आई हैव राइट टू वोट। क्या क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। नाश्ता करो, चलो निकलो यहाँ से। और कुछ नहीं कर सकते आप। ऐसे 1000 लोग होंगे हमारे रेलवे जो तो भाई रेलवे से ले लेवाना, ले लीजिए भाई, वधवाना। तू कौन है कहने वाला वधने वाला है? तू हुआ यू टू टेल इज गोइंग टू राइज। वो समझ में आता है कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है? कुछ समझ में आता। मुझे न्यूज मिला है, न्यूज क्या है वो नहीं पता, मुझे न्यूज मिला शेयर आर गोइंग टू राइज। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारा रोल बहुत कम है मैनेजमेंट में, क्योंकि हमें कुछ समझ में आता। वी आर अ काइंड ऑफ इन्वेस्टर हु जस्ट इन्वेस्ट टू गेन मनी and there is no expectation in terms of business what we have it. आगे सुनो, my question is 1000 में 700 लोगों ने अटेंड किया, 300 नाश्ता किया, 400 अंदर गए, 400 में 300 ने वोट किया। तो जब हम वोट काउंट करने बैठेंगे सिर्फ इनका ही बचेगा। लॉ कहता है, मेरी बात को समझना बच्चों, बहुत भारी कॉन्सेप्ट आ रहा है, आगे सुनो। अब लॉ कहता है, सुनना, रेजोल्यूशन को पास करने के लिए आपको चाहिए या तो ओआर या तो जस्ट आई एम जस्ट कमिंग इन अ सेकंड, माय बेबी इज क्राइंग। एक मिनट, एक सेकंड में। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो लॉ कहता है रेजोल्यूशन को अप्रूव करने के लिए टैबलेट दिख रहा है? Yes, sir. Either you need OR or you need SR. It means that इसको कहते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इसे क्या कहते हैं बेटा? Special result. अब लॉजिक क्या है इसका देखो, once you want to pass the resolution you need OR और SR to be passed। OR मतलब vote casted in favor should be more than vote casted against it is called OR, and vote casted in favor should be 3 times more than vote casted against it is called SR। मतलब आज तक 1000 मेंबर्स जो कंपनी के अंदर थे, अगर आपको ओआर पास करना है तो कितने वोट्स पॉजिटिव होने चाहिए? वोट कास्ट इन फेवर शुड बी मोर देन वोट कास्ट अगेंस्ट इट इफ यू वांट टू पास ओआर। कितने होने चाहिए? More than 50. मतलब नंबर बोलो, नंबर बोलो। 1%. 51. नंबर बोलो, नंबर। कितने लोगों का वोट होना चाहिए? More than 500. आंसर है रॉन्ग। पता है क्यों? आपको मैंने भटकाया है। पता है क्यों? क्योंकि लोगों ने वोट, कितने लोगों ने किया है? सिर्फ और सिर्फ 300. उसका आंसर क्या आना चाहिए था? पता है? 151. दैट्स द कॉन्सेप्ट। मैं आपको घुमा रहा था। क्यों घुमा रहा था? जो लोग मेंबर्स है उसको हमें नहीं गिनना है, जो वोट करे उनको गिनना है। वोट कास्टेड इन फेवर शुड बी मोर देन वोट कास्टेड अगेंस्ट इट। डू यू एग्री? Yes. तो मेंबर्स है, भूल जाओ। आए थे, नाश्ता किया, भूल जाओ। अंदर गए, नहीं वोट किया, भूल जाओ। जिन्होंने वोट किया उनको ही काउंट करो। डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके अंदर कहता है, इसके अंदर कहता है कि अगर मान लीजिए 300 लोगों ने वोट किया ना, हर्ष 300 लोगों ने वोट किया ना, 75 लोगों ने वोट किया कि हमें ये रेजोल्यूशन पास नहीं करना है, तो 225 लोगों को क्या करना पड़ेगा? हमें रेजोल्यूशन पास करना है। वोट कास्टेड इन फेवर शुड बी 3 times more than vote casted against it। तो क्या पास हुआ? तो क्या पास हुआ? Special resolution. पास हुआ। ऐश्वर्या समझ में आ रहा है बेटा? ऋषभ? Yes, sir. Yes, sir. Up my question will be, so when a company requires OR and when a company requires SR, वो भी बता दो सर, खत्म करो। मैं कहूंगा हर सेक्शन को जब आप पढ़ोगे बेटा, when you refer to the section will tell you
कि to approve his matter you need OR or SR. SR. What section tells you that you have to do according to this procedure. मतलब who are we? लॉ ने हर सेक्शन में लिखा है, जैसे बायबैक करना हो तो आपको ऐसा लगेगा, डिविडेंड डिक्लेयर करना है वो OR लगता है, तो हर एक के लिए क्या लिखा गया हर्ष? लिखा गया सेक्शन के अंदर ही कि इसके लिए OR या SR. ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उसके लिए क्या होगा? SR. जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होंगे उसके लिए क्या होगा? OR. I hope the entire flow and the concept of the same is clear. Yes, sir. Yes, sir. Again, Yes, this is sir. not a chapter what I'm teaching you, and I am just accumulating all the concepts in connection with Companies Act before we start learning the Companies Act, right? We सुनो यहाँ पे क्या कह रहा है? Just flashback. Resolutions मतलब business transactions को approve करवाना है, so resolutions कहते हैं. वहां पे resolutions पास होने के दो रास्ते थे, ordinary और special. Ordinary यानी कि जिन्होंने वोट किया है उनमें से मेजोरिटी अगर हो गई पॉजिटिव तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया. स्पेशल यानी कि जब जिन्होंने वोट किया उसमें से 3 गुना लोगों ने अगर वोट किया है फेवर में, एज कम्ड पीपल जिन्होंने वोट किया अगेंस्ट में, तो हमें काउंट करा जाएगा कि SR पास हो चुका है. लेकिन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था होता है? जिन्होंने वोट किया उन्हें ही काउंट करना है और किसी को काउंट करना नहीं है. आर वी क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है. This is finished. Next part. Anyone having a doubt? Please let me know. Next part. Let me just check मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ ना. ठीक है. यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है, क्या आया बच्चा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट Minutes. Minutes. चलो यहाँ पे हर्षल जैन, क्या तुझे पता है बेटा व्हाट डू यू मीन बाय मिनट्स? हर्षल, Yes, sir. व्हाट डू यू मीन बाय मिनट्स? स्ट्राइकर सोच, क्या कभी सोचा है मिनट्स का मतलब क्या होता है? सर मीटिंग में जितने भी टॉपिक्स डिस्कस होते हैं तो किसका कितना टाइम ड्यूरेशन रहता है? शाबाश, गलत जवाब. सर कैन आई ट्राई? शाबाश. तेरिया, सर मिनट्स मतलब जो मीटिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो उसको नोट डाउन करना. ठीक है. ऐश्वर्या, आपको क्या कहना है? सर मीटिंग में जिस लोगों ने जो बोला और क्या क्या रिस्पॉन्सेज रहे वो सब कंक्लूड करके देना मिनट्स में. ठीक है, वेरी गुड. मेरी बात को समझो. मिनट्स पे आता हूं. मिनट्स क्या है? मिनट्स एविडेंस होगा. क्या होगा? एविडेंस. किस चीज का? मीटिंग के अंदर जो भी बिजनेस ट्रांजैक्ट किए गए हैं, मीटिंग के अंदर जो भी बिजनेस ट्रांजैक्ट किए गए हैं उसका प्रूफ क्या है हमारे पास? उसका प्रूफ क्या है हमारे पास कि वो हुआ? वो प्रूफ क्या बनेगा बेटा? मिनट्स बनेगा. आई विल गिव एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू द सेम हाउ इंपॉर्टेंट वुड मिनट्स बी. सुनो, I am an auditor of one of the society in Mumbai. वो सोसाइटी में क्या हुआ पता है? ये बिल्डिंग है और ये उनका कंपाउंड एरिया था इतना, ठीक है. यहाँ पे स्पेस ओपन था, ये स्पेस ओपन था. सोसाइटी की मीटिंग में डिस्कस किया गया, आई वाज एन ऑडिटर, कि ये स्पेस में किसी ने कहा कि चिल्ड्रंस प्ले पार्क बनाते हैं, बच्चों को खेलने की जगह बनाते हैं, मेक अ सम गार्डन काइंड ऑफ अ थिंग. किसी ने कहा कि आई वांट यू टू यूज फॉर व्हाट? कार पार्किंग. कार पार्किंग बहुत कम है सोसाइटी में, तो वी वांट टू यूज इट फॉर कार पार्किंग. हर्ष, तो इसमें डिबेट हुआ और क्या किया गया? फाइनली क्या लिया गया था? वोटिंग बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, एंड एवरीवन कंक्लूडेड फाइनली कि यहाँ पे क्या बनेगा? चिल्ड्रंस प्ले पार्क. कार पार्क हो, बच्चे बाहर चले जा सकते नहीं है. ये कंक्लूजन था और मैं उस मीटिंग में अवेलेबल था जब ये बात हुई, राइट. मान लीजिए यहाँ पे ये डिस्कस हुआ और रिजोल्यूशन क्या हो गया? पास. पास होने के बाद क्या बना?
मिनट्स बना, क्या बना, मिनट्स, और लिखा गया कि इस मीटिंग के अंदर discussion was been made कि the space, open space should be used for which purposes, and all members concluded that it should be used, the majority of members concluded that it should be used for which purpose, play parking purpose. ये था, I think I remember it was 2018 जब ये मैटर पास हुआ था, उस साल में 2021 नहीं सॉरी 2019 या 20 के मीटिंग में एक बंदे ने खड़े होकर कहीं पूछा कि सर आपने हमें कहा था कि यहाँ पे एक प्ले पार्क होगा, ये प्ले पार्क बना क्यों नहीं है मुझे बताओ। स्मॉल आस्क्ड बाय मेंबर आस्था कि ये प्ले पार्क बना क्यों नहीं है। रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। टेल मी व्हाई द प्ले पार्क इज नॉट बीन मेड। तो मेंबर्स ने शुरू कर दिया, ये इसने कहा था वो लाएगा, वो बनाएगा, इसने कहा उसका दोस्त है उस पर पहचान वाला है वो बनाएगा। बंदा बोला आई एम गिविंग यू 7 days। क्या बोला वो बंदा, मेंबर था, आई एम गिविंग यू 7 days, आई वांट हियर द प्ले पार्क इन 7 days। If you don't make this paper in 7 days, I will show these minutes which I have it with me saved from that year. To whom? To registrar of societies. कि आपने as a committee secretary and the chairman, you have not obliged to your obligations, and I going to complain you in the register of कि आपने ये पास किया है, ये आपकी साइन है, ये आपका मिनट्स है जो आपने खुद साइन किया है कि ये हुआ था बात, तो फिर 3 ज्यादा हुआ क्यों नहीं ये काम। आप हो कौन, आप हमारे आप यू आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द सोसाइटी, एंड देन यू एग्री टू मेक इट, व्हाई द हेल यू हैव नॉट मेड इट। At the end of 4th day, parking the garden was ready. At the end of 4th day, garden was. What I'm going to explain you, I'm going to explain you the importance of the word minutes. Boss, minutes are not going to be a joke. This is going to be the evidence which helps you to move forward. I'll explain you one more example. सुना ध्यान से, minutes का रोल कितना बड़ा है, हर सुन मेरी बात। Minutes में लॉ कहता है, एक one more example to you all. I'm the auditor of Bank of Maharashtra. You know Bank of Maharashtra का लिस्ट में है, पता है, वहां का मैं ऑडिटर था 3 साल। तो उसका है ना AGM था, ऑडिटर्स मीटिंग, यहाँ पे ऑडिटर्स जनरल मीटिंग टू डिस्कस विद ऑडिटर्स द प्लान्स फॉर द ईयर, कि हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्रोवाइज एंड ऑल। आई वाज द यंगर ऑडिटर दैट टाइम इन दैट वी वेंट टू मेकर टावर। वहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक मेकर भवन में उनका एक बोर्ड रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम, वहाँ पे ऑडिटर्स पूरे मुंबई के आए हुए थे, अराउंड 40-45 ऑडिटर्स थे, एंड आई वाज देयर आल्सो। तो एक सीनियर ऑडिटर ने बोला कशिश कि वी वांट आवर फीस टू बी इंक्रीज्ड, वी वांट आवर फीस टू बी इंक्रीज्ड फॉर द कमिंग ईयर, दैट इज अ प्रपोजल व्हिच वी वांट यू टू डिस्कस। तो चेयरमैन बोला बैंक का कि ठीक है, आई विल टेक द मैटर इनटू कंसीडरेशन एंड डेफिनेटली विल रिव्यू बैक ऑन द सेम आफ्टर डिस्कसिंग टू आवर बोर्ड, बैंक्स बोर्ड। 3 months later we had one more meeting, the quarterly meetings for the auditors, quarterly meetings with the bank. When we went there, that senior auditor ne kaha, he just raised his hand and said, before we start the meeting, I have to question something. I was like, what happened? Starting in your meeting. वो बंदा क्या बोला, बोला हर्ष, बोला लास्ट मीटिंग में डिस्कशन हुआ था कि हमारे फीस के बारे में बात की जाएगी, आपने कहा था कि मैं हमारे बोर्ड से बात करके आपको बताऊंगा। उसके 1 महीने के बाद बैंक ने मिनट्स शेयर किया। क्या शेयर किया? मिनट्स। और मिनट्स के अंदर हमारी जो बात करी गई थी उसका नामो निशान नहीं था। क्या बोला हमारा ये, क्या बोला, बाय हाउ आर यू ऑथराइज्ड टू मेक अ फॉल्स मिनट्स। जब हमने बात की थी मिनट्स मीटिंग के अंदर कि मिनट्स के फीस रिवाइज होनी चाहिए, तो आपने लिखा क्यों नहीं? हेलो, हाँ सर। यस सर। और मीटिंग को स्टार्ट होने दीजिए, सेकंड मीटिंग को कब तक पता है हर्ष? जब तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया हमारी गलती है, आई विल ऐड द सेम टू द मिनट्स बाय ऑल्टरिंग द मिनट्स। हेलो, क्योंकि हमें क्या पता है, इफ इट इज नॉट इन द मिनट्स ना बेटा, तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रूफ ही नहीं कि हमने बात की थी। हेलो, राइट सर। हम बताएंगे दुनिया को कि हमने बात की थी, हम आगे कभी बोल पाएंगे नहीं कि अब तक फीस रिवाइज नहीं हुई है। तो ये है इम्पोर्टेंस मिनट्स का। अब मैं आपको बोलता हूँ, आप ऑडिटर बनोगे कंपनी के कभी ना कभी, तो कंपनी ने बोला एज पर लॉ बोला है कि आपको ओआर पास करना चाहिए था, आज था आपको एसआर पास करना चाहिए था,
आपने क्या पूछा आपके कंपनी को, कभी कैन यू शो अस कि आपने ओवर पास किया था कि नहीं, क्या आपने एसआर पास किया था कि नहीं बिफोर डूइंग दिस. तो व्हाट कैन दे गिव यू फॉर रिलायंस, दे कैन गिव यू फॉर रिलायबिलिटी इज मिनट्स. कि देखो मेरा मिनट्स में लिखा गया है कि हमने ये अप्रूव किया था, हमने ओवर पास किया था. अभी गेटिंग इट क्लियरली एवरीवन? यस सर. मतलब मिनट्स का कॉन्सेप्ट आपके डे टू डे लाइफ में, एजीएम सोसाइटी की हो, कंपनी की हो, कोई भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है एज एन एविडेंस पर्पस. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कम टू यू इज, सो मिनट्स के अंदर क्या चीजें ऐड होनी चाहिए, क्या चीजें रिमूव होनी चाहिए, who will decide that? Who decided? Chairman of the meeting. चेयरमैन. नंबर 2, सर क्या मीटिंग में हर चीज मेंशन की जानी चाहिए कि कुछ निकालनी चाहिए, मुझे बोलो. Should minutes portray everything what happened in the meeting or should it exclude something from the same? Sir, reduce. Sir, everything. Everything. Okay. हर्ष तुझे क्या कहना Like a summary. सर थोड़ा बहुत तो निकालना ही चाहिए जिसकी जरूरत नहीं है. ओके. जैसे कि हर्ष, अरे give me a Jain sandwich please. I don't eat non-Jain food. क्या वो ऐड करेगा वो? Exclude, sir, exclude those things which are not relevant ठीक or है, not too important. चलो ठीक है. इररिलेवेंट चीजों को रिमूव करना चाहिए. तो लेट आया या क्या, तो लेट आता है हर बार, फालतू बातें की तो ये सब ऐड करेंगे. वो लेट आया था, उसे गाली दिया उसको, फिर हमने चालू किया, ऐसा बोलेंगे नहीं. ये और इसके अलावा कुछ और जो हमें रिमूव करना चाहिए? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ. और जो आर्ग्यूमेंट हुआ, मतलब जो बात हुई वो टॉपिक पे. नहीं, सुनो लॉ कहता है 3 things have to be removed. Sakshi, 3 things. I'll tell you 3 things. One was irrelevant. Second is detrimental to the company. Yes, sir. What is detrimental to the company? सर हमने इस बार में एक नया फॉर्मूला क्रिएट किया है जिससे मार्केट में तहलका मच जाएगा, और वो फॉर्मूला डिस्कस किया आपने मीटिंग के अंदर. क्या आप रिलीज करोगे बाहर? नो सर. नो सर. No, sir. आपने अभी से अमिताभ बच्चन को अपॉइंट किया एज ए मार्केटिंग एम्बेसडर, क्या आप रिलीज पहले से कर दोगे बाहर? No, sir. नो तो सर. जो भी चीजें डेट्रीमेंटल है, किससे? डेट्रीमेंटल टू द कंपनी in terms of what it may lead to some leakage of information, that should not be a part of dash. Minutes. Should not be a part of minutes. Minutes पे ढंढेरा नहीं पीटना है. आप वही रिपीट करो ना. Detrimental means something which may dent the company, which may lead to a loss to a company, which may leak some information of the company to the outsiders. जियो ने जब जियो लॉन्च किया होगा, जियो का जो प्राइसिंग प्लान है वो बाहर लीक किया होगा 6 महीने 12 महीने पहले का, हम ये करने वाले थे. अगर ऐसा बोले तो बुरा बच जाता, अभी तक मरता नहीं इतने जल्दी, राइट? क्यों लीक ही नहीं हुआ होगा? प्लान ही लीक नहीं हुआ कि क्या भाव पे लोग लेके आएंगे. हेलो. Yes, sir. यस सर. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. डेट्रीमेंट हटा दिया आपने, इररिलेवेंट चीजें हटा दी जो हमने कहा यहाँ पे, राइट? एक आता है डिसरेप्यूट, मतलब ऐसी चीज है जो इट में अफेक्ट द कंपनीज रेपुटेशन. झगड़ा हुआ था कंपनी के अंदर, मारामारी हो गई, गाली गलौच हो गई थी मुकेश भाई के साथ, किसी अनिल भाई की, ये सब बातें बाहर आएगी नहीं. इट एड डिसरेप्यूट. तो DID, डेट्रीमेंटल, डिसरेप्यूट एंड इररिलेवेंट चीजें क्या रहेगी?
मीटिंग के मिनट्स में काउंट नहीं हो. Who decide this? चेयरमैन. चेयरमैन डिसाइड करेगा कि आएगी या नहीं. लेकिन जब मेरी बात आई थी फीस की, जो मैंने फीस की बात की थी कि सीए ने फीस मांगी कि फीस रिवाइज करो, क्या वो डेट्रीमेंटल थी? नहीं सर. 11 थी? नहीं सर, डेफिनेटली नॉट. क्या डिसएग्री था? नो सर. आना चाहिए था? नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था. मतलब ये कि चेयरमैन कैन ओनली रिमूव द थिंग्स व्हिच आर detrimental, which are irrelevant, which are brings disrepute to the company. Otherwise, it does not have a power to remove anything from the company's minutes. Do you agree? Yes, sir. आपकी Yes, कंपनी sir. नहीं है Yes, sir. कि जो चाहे वो करे. He has to do what has to be done. He cannot do on his own, but he can remove the things which are detrimental, irrelevant, and which brings disrepute to the company. I hope we are clear with this also, right? Yes, sir. ठीक है. Moving further. अब ये वाला फेज खत्म होता है, मैं आता हूं पहले मैं बात कर रहा हूं इक्विटी शेयर होल्डर्स की. ठीक है, मैंने जो भी बोल रहा हूं वो आपके बुक्स में है. हाँ सर है, सब लिखा हुआ है. हाँ सर है. मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबको कंपाइल कर रहा हूं एट अ पॉइंट, so you know something out of it when we move to the topics. This will be segregated somewhere or the other. Now the question is here, the next question to every one of you, that do you need a break? क्या आप थोड़े, you need a 2-minute breather in between? बोलो हाँ या ना. Yes, sir. Yes. मनन बोला हाँ. See, अब सर ने आप बोलो, हम हाँ ही बोलेंगे. सर आप कैसी बात कर रहे हो सर? ठीक है. Now ऐसा नहीं है. If everybody wishes to have a break, then we can have मतलब. Yes. Thank you so much मनन. मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि I want to create an environment in the session whereby you can easily let us know after some point of time, sir, every 90 minutes if you can give a make of 2-3 minutes, 4 minutes, and we can just regroup ourselves in case we are lost somewhere or the other. तो हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं 10 मिनट ब्रेक ले लिया, 2-3 मिनट भी ब्रेक ले लिया तो I can afford that, and you can also get some breather. एक वॉक किया, पानी पिया, ठीक है, 2 मिनट मम्मी पापा से बात किया, या कोई गर्लफ्रेंड का मैसेज आया तो देख लिया और फिर गुड नाइट बोल के छोड़ दिया, या फिर टेक केयर बोल के छोड़ दिया, तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है. ठीक है, तो आप टेक अ ब्रेक नाउ. आई एम गिविंग यू ब्रेक ऑफ, मेरे वॉच में 2:15 हुआ है, अच्छा है 2:18. ठीक है, 2:18 तक का ब्रेक, वापस शुरू सेम सेशन. Yes, sir. डोंट गेट आउट ऑफ इट, बी हियर ओनली. ठीक है, यू कैन, आई मीन टू से लॉग आउट मत करना. यू कैन स्विच ऑफ योर वीडियो इफ यू वांट टू, बट डोंट लॉग आउट.
Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Let's start. I just request, I was just taking attendance till that time. Please let me know who are absent today. If any of your friend is absent today, please let me know. क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है and it takes my time a bit out of it. So I hope you can. Okay. I got one message. Cherry is absent today. Okay. Others, please let me know. I think Sakshi, there was one student. Jyoti, there was one student. Sanisha. Rasta, do you know that? Do you know her? Sir, I spoke to Mhm. Tanisha. Tanisha told me that she hasn't enrolled as of yet. Okay. Okay. No problem. Can we start? Can we start now? Yes, sir. Yes, sir. Membership and shareholder. Can someone tell me what is the difference between membership and a shareholder? It means that what is the difference between member and a shareholder? दोनों में difference क्या होगा? Somewhere, some people write a shareholder. Somewhere, some people say a member. Is it the same thing or different thing? Anand. Anand, Yes. क्या ये same है कि अलग-अलग है? Sir, I think there's a slight difference between the two. Membership is a broader concept, I think, sir, which consists of the shareholders and. Very good, but है क्या difference बेटा? Sir, I'm not clear about it. Very No good. problem. Still you have tried good. Very good. Sir, Yes. सर कंपनीज में हम लोग शेयर होल्डर वर्ड यूज करते हैं और मोस्टली पार्टनरशिप में मेंबरशिप. नहीं बेटा. So members are the owners of the company. Even shareholders are the owners. नहीं. Yes. The So the members are employees of basically the the employees of the company, whereas shareholder hold some of the shares of the company and are slightly in the position of ownership. So like some ex-employees of the company may hold shares of the company, but they are not considered as members of the company. No बेटा. Sir, every person who is engaged with the company is called a member. मतलब, we may define it so. नहीं रे. Sir, a member is the owner of the company whose name is entered in the registrar, but the shareholder's name is not entered, even though he's the owner of the company. सवाल पढ़ा है ना लेक्चर में पढ़ा है ना. हाँ. शाबाश. बाकी सबको मार खाना चाहिए जो उन्होंने पढ़ा था मेरे पास ये और नहीं बोल पाया. शाबाश. मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज का. शाबाश. अच्छा सुनो. See, a shareholder means अब सब एग्जांपल लेता हूँ. आस्था भाटिया has having shares of X Limited. Now, in the books of X Limited, she's been the owner of shares of X Limited. Shareholder name आस्था भाटिया. इसको कहते हैं कि आस्था के पास शेयर्स भी हैं और आस्था का नाम कंपनी के रजिस्टर के अंदर भी है. तो जैसे ही आस्था का नाम कंपनी के रजिस्टर में ऐड होता है आस्था मेंबर बन जाती है. अब सुनो क्या होता है. I repeat my word. The moment your name is entered in the register of members, you become a member. सुनो ध्यान से. Now you'll understand shareholder also very well. आस्था भाटिया क्या हो रहा है यहाँ पे. आस्था भाटिया sold the shares तो हर्ष मेवाड़ा को उसने शेयर्स बेच दिया at ₹2 lakh. ठीक है. ऑफिशियल ट्रांजैक्शन. Now this has been done on 21st of January. On this date, the shares are sold to Harsh Mewada. The question is here, who is a member today? And who is a shareholder today? I'll tell you, okay, now Harsh is the shareholder because he's only holding the shares with him. But still Astha is the member because अभी तक उसका नाम रिमूव नहीं हुआ है और हर्ष का नाम ऐड नहीं हुआ है. जब तक हर्ष का नाम कंपनी अपने अकाउंट में ऐड करके ऐसा का निकालती नहीं है तब आस्था मेंबर रहेगी.
और तब तक शेयर होल्डर कौन है? हर्ष. मतलब it's a situation whereby a shareholder is not a member. Who? Harsh. And a member is not a shareholder. That is who? Asta. Do you agree? Yes, sir. Is every one of you here? Such shareholder यानी क्या? जिसके पास शेयर्स है वो शेयरहोल्डर. साक्षी, the simplest meaning. जिसके पास शेयर्स है वो शेयरहोल्डर. और जिसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में आ जाता है ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, उसे हम मेंबर्स कहते हैं. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन कम्स अप हियर इज, अगर 24 जनवरी को ये हर्ष के नाम पे होता, हर्ष को शेयर दे दिए और हर्ष ने अपने नाम पे कभी किया, तब उसने अपने नाम पे कर दिया रजिस्टर के अंदर 27th को. तो तब हर्ष क्या बन गया? मेंबर ही बन गया. डू यू एग्री एवरीवन? Yes. Yes, sir. लेकिन अगर 22 तारीख को कंपनी डिविडेंड क्या डिक्लेयर किया? डिविडेंड डिक्लेयर किया तो किसे मिलेगा? हर्ष को या आस्था को? आस्था को. आस्था को. क्यों? हर्ष को. सॉरी सर, हर्ष को मिलना चाहिए ना? बेटा, दिस इज द ब्यूटी व्हाट आई एम गोइंग टू आस्क यू. एज अ शेयर होल्डर यू कैन से हर्ष को मिलना चाहिए था, लेकिन हाउ विल कंपनी नो कि आस्था इज नॉट शेयर होल्डर एनीमोर? तो बुक्स क्लोज कर देते हैं. The point is, beta, company in its record has the name of Asta till now, and the shares have been transferred by Asta individually to Harsh, but अभी तक company के record में कौन है owner? Asta. इसलिए बेटा, since Asta continues to be the owner in the books of the company, in the record of the company, in the register of the company, who is going to have a right to this? It's Asta. आस्था. Yes, sir. I hope you are clear with this. Yes, sir. तो यहाँ पे हमने स्लाइट वेरिएशन देखा. किस चीज का? A variation between what? A variation between a shareholder and a member. Are we clear with this? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. मैं एक और चीज मेरे बैच में बच्चों को पढ़ाई होगी, मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ वापस, ये चीज को वापस पढ़ाता हूँ. पहला, every company which is public company needs how many members to start? Minimum 7. 7. Every company being a private company needs how many members to start? 2. Every company being an OPC, how many members it requires to start? 1. Do you agree? Yes, sir. Yes. अगर कंपनी के पास 7 to 1, आई विल, मेरे स्टूडेंट्स जवाब नहीं देंगे इस एलिमेंट का, ठीक है? शांति रखना थोड़ा, जिन्होंने फाउंडेशन मेरे पास पढ़ा है, ठीक है? बाकी उन लोग भूल भी सकते हैं, उनको भरोसा नहीं, ठीक है? जवाब वैसे भी नहीं देंगे. तो क्वेश्चन ये है कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है और कंपनी के मेंबर्स जो जरूरी है फॉर इनकॉर्पोरेशन, उस केस में पहला कौन आएगा? मेंबर्स पहले बनेंगे और कंपनी फॉर्म होगी, या कंपनी फॉर्म होके मेंबर्स बनेंगे? आंसर मी, नॉट माय स्टूडेंट्स. जैसे कि ऋषभ आंसर दे सकता है, विशुद्धि के आंसर, हर्षो के आंसर, मन के आंसर, आस्था के आंसर, साक्षी के आंसर. कम ऑन, कंपनी पहले बनेगी या मेंबर्स पहले बनेंगे? सब मेंबर्स होंगे तो सर दोनों एक साथ. सर दोनों एक साथ. दोनों एक साथ. आंसर नंबर नो, आंसर इज रॉन्ग. द आंसर इज दोनों एक साथ बनेंगे. आंसर इज व्हाट? कंपनी पहले बनेगी आस्था, तो वी कैन से हाउ कैन कंपनी बी फॉर्म विदाउट मेंबर्स? मेंबर्स पहले आ गए साथी और विन से, हाउ कैन मेंबर्स बी विदाउट अ कंपनी? Yes, sir. So it's an impossible scenario to have a one over another. An impossible scenario. So how do you solve that scenario? Answer तो आपने दे दिया साथ में, लेकिन कैसे? Let's understand that element also. Now, let me show you. मेरे एक वीडियो में, see, I'll show you. In a memorandum of a company, you will have heard the word subscribers to memorandum. Do you remember subscription clause? Foundation में हमने पढ़ा होता. Yes, sir. Yes, sir. में ना नेम ऑफ द सब्सक्राइबर लिखा होता है, नंबर शेयर्स टू बी टेकन बाय हिम, सिग्नेचर होती है उसकी, उसमें कितने नाम, मिनिमम कितने नाम होंगे? मिनिमम सर स्क्रीन शेयर बन गया है. 7 नाम होंगे, स्क्रीन राइट? शेयर नहीं हो रही. ओके ओके. ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज में नेम एक्सेट्रा 7 लोगों का मिनिमम नाम चाहिए.
बेटा you know who are subscribers? Subscribers are the people who are ready to become a member immediately when company is formed. Immediately when company is formed. Immediately मतलब parallelly. मतलब जिस टाइम पे एरोसी ने आपको सर्टिफिकेट दिया, रजिस्ट्रार्स ने आपको सर्टिफिकेट दिया ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उस टाइम पे पहले लोग क्या बन जाते हैं? मेंबर्स। क्या बन जाते हैं? इसे सब्सक्राइबर्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सब्सक्राइबर्स कहते हैं। तो इट्स यू नो हाउ, सुनो मेरी बात ध्यान से। नॉर्मली मेंबर कौन होता है? नॉर्मली मेंबर कौन होता है? जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है वो मेंबर होता है। नॉर्मली कौन मेंबर होता है? जिसका नाम कहाँ पे है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। लेकिन साक्षी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कब बनेगा? कंपनी फॉर्म होने के बाद। यस सर। और हमें मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए पहले से? 7। 7। So how can you make a register of members before making a company? It's impossible. So you can make it later on when the allotment has been made. But Yes, for the first one, how can you make it, sir? So to solve this scenario, what they have done, they have created a new concept that is called what? That is called subscribers. And they become a member, beta, even with the company is without, even when the company is just formed. उस टाइम पे लोग मेंबर बन जाते हैं। उसका प्रूफ क्या है पता है? प्रूफ दिखा दो मैं आपको उसका। After that, can you repeat what you said in last 2 minutes? क्या हुआ? डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क। दिख रहा है आपको अभी? Yes sir. Now see here, section 2/55 of the law. यहाँ से दिखाता हूँ MCA के बोर्ड से। अरे यार 55 चाहिए था मैंने को। चलो यहां से देखना पड़ेगा। सर मेंबर कौन होता है? सेक्शन 2/55 मेंबर को डिफाइन करता है, राइट? ये क्या लिखा है? पहला लाइन में क्या लिखा है? द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी हैव अग्रीड टू बिकम अ मेंबर। मतलब मेंबर डेफिनेशन में साक्षी नॉर्मली क्या लिखा होना चाहिए था? जिसका नाम एंटर होता है वो मेंबर है। लेकिन जस्ट टू ऐड दिस प्रॉब्लम, व्हाट दे हैव डन, द सब्सक्राइबर्स ऑफ द कंपनी shall be deemed to have been agreed to become a member. Deemed to have been agreed to be, मतलब आपको फोर्सली डीम करना पड़ा कि मान लो कि मेंबर है। किसको मान लो? 7 सब्सक्राइबर को मेंबर मान लो, नहीं तो दुनिया में मेंबर और कंपनी बनना इम्पॉसिबल हो जाएगा। डू यू अग्री? यस सर। तो लूप होल जो था लॉ का, उसे सॉल्व किया गया है बाय व्हाट? बाय काउंटिंग सब्सक्राइबर एज मेंबर। हाउ? बाय डिफाइनिंग द वर्ड मेंबर and adding the word subscriber as deemed to be a member. Do you agree or not? Yes sir. I repeat it one more time. Member normally कौन होता है? हर जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आया, राइट? लेकिन इस फेज में अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनने के बाद में तो कंपनी फॉर्म होते वक्त मेंबर होते नहीं। yes, और उसके बिना कंपनी बनती नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? श्रुति, जो लोग ऑलरेडी क्या थे? सब्सक्राइबर्स थे, जिन्होंने प्रॉमिस किया था, उन्हें क्या मान लिया हमने? उनको हमने मेंबर मान लिया। ऐसा कौन कहता है? सेक्शन 2/55 ऑफ मेंबर डेफिनेशन कहता है। डू यू एग्री? यस सर। आई होप यू आर क्लियर विद द कांसेप्ट। यस The second query comes up here and you will love it if you are focusing it to it. A member तो आप बन गए, are you shareholder in that case? Subscriber are the members now deemed to be member of company's form. क्या वो shareholder है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना? Come on Dhruti, come on. Come on Anand, Kashish, Ish, समृद्धि, तुझा टीव्ही काय कशाला व्हिडिओ ऑफ होतो रे? food. अभी फूड लिया, अब से बंद रखा था। चलो अभी से ना फूड लो, जो खाना है खाओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और हो सके तो नाश्ता ऐसा करो जो आप खा सको वीडियो ऑन करके, ठीक है? खाना खाने चिकन बिकन खा के मत बैठना सर के सामने, ठीक है? चलो बोलो, इज ए शेयर होल्डर जो आपका सब्सक्राइबर है, क्या वो शेयर होल्डर बना जब कंपनी फॉर्म हुई? बोलो हाँ या ना।
Come on, Aishwarya. Yes, sir. Yes, sir. Answer is no. पता है क्यों? वो शेयर होल्डर तब बनेगा जब शेयर्स अलॉट किया जाएगा। वो अलॉट कब किया जाएगा? जब कंपनी बनने के बाद शेयर्स बनाएगी। लेकिन जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तब वो मेंबर बनता है, लेकिन शेयर होल्डर बन पाता नहीं है, क्योंकि शेयर उसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर होल्डर? जिसके पास शेयर हो। और जब कंपनी बनी है, सर बनी, जन्म हुआ है, क्या शेयर मांगोगे उसके बाद? बनने तो दे, बनने के बाद देगी ना कंपनी। मतलब दैट इज अ फेज बेटा। द सब्सक्राइबर्स पहले बिकम व्हाट? दे बिकम मेंबर्स फर्स्ट एंड देन द शेयर होल्डर। हाउ ब्यूटीफुल द लॉ इज। सब्सक्राइबर्स पहले क्या बनते हैं बेटा? मेंबर बनते हैं। और जब शेयर होल्डर तब वो क्या बन जाते हैं? शेयर होल्डर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. I'll give you an example जहाँ पे if you buy a flat in a society, मैं आपको वो एग्जांपल छोड़ दो। आस्था एंड हर्ष का एग्जांपल कंटिन्यू हो रहा था। हर्ष पहले क्या बना रहा है? शेयर होल्डर बना, उसके बाद मेंबर बना। आई होप यू नो दिस। यस सर। हमने अभी एग्जांपल क्या लिया? जब अगर आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू शेयर खरीद रहे हो हर्ष, पहले आप क्या बनोगे? मेंबर। उसके बाद आप क्या बनोगे? शेयर होल्डर। लेकिन आप इसीलिए सिनोनिमस है ये। कोई लोग जो लीगल फील्ड के नहीं, वो लोग क्या बोलते हैं? सब इज वन एंड द सेम थिंग। They feel what? These both things are one and the same. Shareholder member, but it may be same if Astha is the member and Astha is the shareholder. It may not be the same if she is not the same. Do you agree? Yes, sir. जब तक आस्था के नाम पे शेयर था और उसने बेचा नहीं, तब तक वही शेयर थी, वही मेंबर थी, क्योंकि उसका शेयर भी था और उसके पास अपना नाम भी था रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर। वैसा फेज आता है जब आप शेयर्स को बेचोगे, और वो फेज में आप क्या बन जाओगे? मेंबर बट नॉट अ शेयर होल्डर। तो ऐसा फेज आएगा जब शेयर होल्डर, हर्ष क्या बनेगा? शेयर होल्डर बट नॉट अ मेंबर। और फिर ऐसा फेज आएगा जब आप शेयर होल्डर भी नहीं होगे, मेंबर भी नहीं रहोगे। आर वी क्लियर? यस सर। ठीक है। Yes, sir. Anyone have a doubt? Please ask me up. चलो। Have we taken something technical till now? Something common which we need to understand. Do you agree? Common terms हमने यूज किए। अभी आगे सुनो 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 सुनो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर में क्या फर्क होता है? बताओ। ये तो सर चिंदी पूछा सर, बता दो। चिंदी है तो मुझे पूछना है। Shareholders have voting rights and preference shareholders have preference for two things. One is dividend and second is repayment of capital. Second is repayment of capital at the time of winding up of company. ठीक है। Anything else to the same? क्या किसी को कुछ ऐड लेस करना है? अक्षत शाह, खाना खा लिया बेटा तूने? ठीक है, बोलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है जितना उनका परसेंटेज रहता है। ठीक है, यहाँ पे नॉट फिक्स, बराबर। पेड एट द एंड, पेड कन्वर्ट कैपिटल। कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में, बट इक्विटी को नहीं कर सकते प्रेफरेंस में। सॉरी श्रवण। सर जो प्रेफरेंस शेयर है उनको हम इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट द इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर्स। डिस्टिंक्शन बिटवीन, पॉइंट एक दिया भाई ने, मैं डिस्टिंक्शन पूछ रहा हूँ तुमको। हाँ देखो, माय क्वेश्चन टू यू इज, दोनों में डिफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ मीनिंग? सुनो, सुना बच्चों ध्यान से। ये सारा टैबलेट पे प्रेशर को बंद कर देता हूँ। सुनो, हाँ आपको बोला प्रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है? बस याद आएगा तेरे को जब मैं बोलूंगा। तो क्या बोला है? जहां है प्रेफरेंस, जहां है प्रेफरेंस, वहां है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सॉरी, उसमें नया क्या बोला बताता हूं। फर्स्ट बोला जब आपको डिविडेंड में प्रेफरेंस मिलेगा और कैपिटल के रीपेमेंट में प्रेफरेंस मिलेगा, तो आप इक्विटी नहीं हो, आप क्या हो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। माय क्वेश्चन इज, अगर कंपनी का प्रॉफिट जो है वो आपने दोनों ने शेयर किया, मतलब क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को
कुछ मिल सकता है more than dividend which is fixed in nature? Can a preference shareholder No, beta sir. get something more than dividend which is fixed? No, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्या can he get more than the dividend what is fixed? सर अगर सब कुछ बाकियों को बांट दिया उसके बाद अगर कुछ बचे तो उनकी प्रेफरेंस रहती है उस पे, मतलब उन्हें और सब कुछ डिविडेंड बांटने बैठे हैं और बहुत कुछ है बांटने का, लेकिन उनका कैपिटल डिविडेंड का रेट पे था 9% के रेट पे था, उनको दे दिया 9%, या फिर कैपिटल जो वगैरह उतना दे दिया. यस सर. कैन यू गिव समथिंग मोर टू देम? हमको खुशी हुई और डिविडेंड ले लो, चलो और 18% ले लो. No, sir. तो वो अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होंगे तो मिल सकते हैं उनको. पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस होंगे तो मिल सकता है. अरे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस बताओ बेटा, तो सिखाओ मुझे. तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर मतलब जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कंपनी का बचा हुआ है उस पे वो लोग राइट है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का. ठीक है, मेरी बात को समझना. लॉ कहता है, सुनो, a preference shareholder can get surplus in profits. Yes, he can also get surplus answer is yes. क्या एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट का सरप्लस मिल सकता है? बोला आपको देना है तो दे सकते हो, अगर लिखा है तो. पार्टिसिपेटिंग की बात की मैडम ने. कैपिटल सरप्लस, सर कैपिटल सरप्लस है, दे हैव टू पे 100 करोड़, दे पे 120 करोड़ एक्स्ट्रा, चलेगा. आपको देना है तो दो, एज पर अग्रीमेंट, ज्यादा एज पर अग्रीमेंट. लेकिन अगर आपको ये जानना है ना कि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है या कौन सा शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर बेटा, तो एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, होता है क्या बेटा? क्या? अगर उसका कैपिटल रीपेमेंट इक्विटी के पहले होगा, और अगर उसका डिविडेंड पेमेंट इक्विटी के पहले होगा तो वो प्रेफरेंस. irrespective of the fact कि आपको ज्यादा देना चाहते हो या नहीं, वो में फर्क नहीं पड़ा, दो नहीं देना मत दो. If you want to give more capital का part, you can pay him if you want to pay him. But what is important here, are you giving a preference or not? Shruti, are you giving him the preference or not? If you are giving a preference, then it is a bloody preference share. If you don't give him a preference, then it's not a preference share, irrespective of fact. आप preference share करो ना करो, जो करना है करो. आगे क्लियर? कोई आपको पूछे प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या, जिससे मिला प्रेफरेंस, वो डिविडेंड, कैपिटल, वो प्रेफरेंस, इररिस्पेक्टिव इफेक्ट, ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है, हमें फर्क पड़ता नहीं है. प्रेफरेंस मिला तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर. अभी क्लियर? Yes, sir. तो what is equity share, Sakshi? What will be the equity share? Shares which are not preference shares are equity. शाबाश शाबाश शाबाश. साक्षी बेटा, जो प्रेफरेंस नहीं होगा वही इक्विटी माना जाएगा. लीगली द वर्ड इक्विटी इज नॉट डिफाइंड, बट डिफाइंड इन एन इनडायरेक्ट वे. कि जो इक्विटी नहीं, जो प्रेफरेंस नहीं वो इक्विटी. प्रेफरेंस क्या है? जिसको प्रेफरेंस है. इक्विटी क्या है? जिसको प्रेफरेंस नहीं है, दैट इज व्हिच इज नॉट प्रेफरेंस, इज एन इक्विटी शेयर. आगे क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. शाबाश. हमारा सेशन ऑफिशियली, ऑब्वियसली आई विल नॉट कीप सेशन पूरा 3 आवर्स का टुडे, इट्स द फर्स्ट सेशन. मेरा आज का टारगेट क्या है? आपको ये सिखाना द इंट्रोडक्टरी पार्ट टू द एंटायर पार्ट. हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन से, तो अभी भी मेरा कुछ बाकी है. मुझे लगता है 15-20 मिनट में हो जाना चाहिए, तो आपका 3 से 3:15 के बीच में पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा फॉर द डे. ठीक है, तो आप आराम कर सकते हो. संडे लेक्चर हम नहीं रखने वाले हैं फॉर 2 वीक्स एटलीस्ट. तो हम मंडे को मिलेंगे 1 बजे वापस, एंड यू गेट टाइम टेबल फॉर द एंटायर वीक ऑन संडे इवनिंग. लेक्चर मेरा ही है मंडे को भी. ठीक है, और मंडे के लेक्चर के लिए आपके नोट्स बोर्ड्स का पार्टनर जो आपको कल मैसेज आ जाएगा. यू विल हैव 2 ऑप्शंस टू दैट. नंबर 1 इज पीडीएफ, व्हाट डू यू गेट इट एज ऑफ नाउ. और अगर आपको एक अर्ली बर्ड बुक का प्रिंट चाहिए अर्ली, कि आपको अभी से भी प्रिंट आउट से पढ़ने की इच्छा है, you can also arrange it for the same also. That will be a book only for a 45-day book. That will be till your results are out, and then it's out, it's over. But then that book will be used, utilized, and then subsequently you'll have the full books.
एंड इफ यू वेरी श्योर कि आप पास होने ही वाले हो तो आई रिकमेंड कि आप फुल बुक्स ही ले लो अभी से ही, मतलब 10-12 बुक जो हमारी आएगी वो सब ले लो, घर पे भर दो पूरी बुक्स। बट मेरे हिसाब से एटलीस्ट अर्ली बर्ड बुक, व्हाट यू डन अर्ली बर्ड बुक, हमने हर चैप्टर्स जो हमें कवर करने हैं, कॉस्टिंग हो या टैक्स के हो या अकाउंट्स के हो या लॉ के हो, एफएम वो सब हमने मर्ज कर दिया इन सिंगल बुक, दो चैप्टर्स को, तो सो दैट इट्स अ कंपाइल्ड बुक व्हिच कवर ऑल सब्जेक्ट्स व्हिच हैव बीन डन टिल योर रिजल्ट। Yes, sir. ठीक है, but you have to understand that will be something, if you take it over today, if you want to take it that part, then you have to bear the cost to it, because normally what we do is purely your fees is refundable in case you fail, right? But the printout cost तो ठीक है, but delivery cost will be more to the same. तो आपको सिर्फ mostly will be charging you one, ऐसा नहीं कि 1000 रुपए, it will be 150 or 200 rupees per student if you want a early bird book with delivery. Without delivery it will be hardly 80 rupees or 100 rupees for you. मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, 100 रुपए लेने की बात नहीं, मिसयूज नहीं करना है मुझे, कि किसी को नहीं चाहिए फिर भी लेके बैठ जाएगा, पढ़ेगा नहीं फिर भी लेके बैठ जाएगा। तो सिंपल है, आपको सॉफ्ट कॉपी तो मिलेगी, अगर आपको प्रिंटेड चाहिए तो 100 रुपीज में मैं आपको प्रिंटेड कॉपी दे दूंगा। वो किस लिए, खाली 45 डेज का अलग बुक बनाया कि आपको 45 डेज को चाहिए हाथ में पढ़ने के लिए तो आपको मिले, दैट्स द आइडिया। और उसके लिए हमने क्या किया, सबको कंपाइल किया, किसको, हर बुक में से कुछ चैप्टर्स को यहाँ पे ऐड करके मर्ज कर दिया। आगे क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Sir, तो मॉड्यूल अभी ऑर्डर करना चाहिए कि बाद में? क्या ICI मॉड्यूल्स? वे तेरे समझ गया ना, तो जब तक तू पास नहीं होता है तो एलिजिबल नहीं है किताबों के लिए, हम इनएलिजिबल कैरेक्टर है। और रही बात मंगाने की, वो मंगा के रद्दी में ही देनी है, तो ज्यादा मतलब डेफिनेटली यू हैव टू यूज इट, ऐसा नहीं मजाक कर रहा था। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दिल्ली बहुत दूर है बेटा, पास होने के बाद 1 महीना लगेगा बुक आने के लिए, ठीक है? हमारा सेटिंग वेटिंग वाली बुक मोल से ही काम नहीं आवશે, ठीक है? सर अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट डेट क्या होगी? अप्रोक्सीमेटली इट विल बी बिटवीन 5th to 15th of February। ओके सर। तो आप पूरा जनवरी जो है, मेरे हिसाब से कभी कभी जनवरी एंड में आ जाता है 20-25 के आजू बाजू, बट नॉर्मली इट विल बी 5th February के आजू बाजू आना चाहिए रिजल्ट, 5th to 10th के आसपास रिजल्ट शुड बी आउट। तो आप ये समझ लो ना, जनवरी पूरा मंथ जो है हमें बहुत यूटिलाइज करना है हमारी पढ़ाई पे, दैट 1 month of your study can change the game subsequently in November। that 40-30 days का पढ़ाई अप्रोक्सीमेटली आप 4 टेस्ट दे पाओगे, 7 Jan, 14 Jan, 21 Jan, 28 Jan, 4 टेस्ट हो जाएगी, पढ़ के होगा। पहला पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू स्टार्ट एन अर्ली बर्ड, द मोमेंटम। आज आप बैठे हो, आपने बहुत कुछ सीख लिया 2 घंटे में, इमेजिन करो आप एक ऐसे सेशन 45 सेशन बैठोगे तो आप एक मोमेंटम पे आ जाओगे, एक मैच्योरिटी पे आ जाओगे सी इंटर के, and that you will lose it, you will not get that time to mature when you start on late bird. So that level of time you cannot give it for you also, let me regain, let me restart now. No sir, if you start in February then you have lost that time, then you have to be very fast, and that you can't capture subsequently. So people who don't understand that element, I regret for them, but it's very important for CA in the November 22 first attempt clear का mindset है तो भाई करना ही करना है। चलो एनीवेज ये हो गया, मुझे एक और चीज बतानी तो थी, कौन सी गई? चलो यहाँ पे एक वर्ड आएगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, लिख लेता हूँ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब इसका मतलब क्या होता है, we need to understand that, ठीक है? Now normally we go to the court for a dispute to be resolved, for compliances or interventions of Companies Act matter। हर्ष, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ये है आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, क्या है ये? ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये है कंपनीज ऑफ इंडिया, जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर हुई है। मुंबई में रिपोर्टिंग किसको करना होता है हर्ष? ROC को।
आपको आपने ऑडिट किया, कंप्लायंस किया, सब रिपोर्ट कहाँ पे होता है? आरओसी के पास। आरओसी पे। मैं आपको दिखाता हूँ आरओसी। ये आपका पोर्टल है, कैन यू सी द पोर्टल? यस सर। और ये आपके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की मैं बात करूं तो ये कहाँ पे है इंडिया में रजिस्ट्रार्स, उसमें मैं आता हूँ हमारे मुंबई वाले पे। तो मुंबई में हर्ष कहाँ पे है? ये मरीन ड्राइव, आरओसी 100 एवरेस्ट बिल्डिंग, मरीन ड्राइव, राइट? यस सर। ये इनके फोन नंबर है, ये रेसिडेंशियल है। मुंबई मेरे साथ 2 आरओसी, एक आरओसी मुंबई, आरओसी पुणे, हर जगह 2 होती नहीं, लेकिन हमारे साथ में कितने हैं? 2 है। अगर आपको कंपनी फॉर्म करनी है मुंबई में तो कहाँ करनी पड़ेगी? रजिस्ट्रार आरओसी मुंबई, पुणे में आरओसी पुणे, हर जगह अलग अलग आरओसी होता है। वो कौन है? केयर टेकर। ऐसा मतलब केयर टेकर वो टेक्स इनटू अकाउंट कि भाई कंपनी का कंप्लायंस ठीक से सब हो रहा है कि नहीं। वहां पे आरओसी के लोग बैठते हैं। अभी सुनो ध्यान से, अगर there is some dispute between whom? Company and ROC, company and आरओसी। तो मैटर आपको कोर्ट में जाएगा सर, लेकिन हम क्या कहेंगे यहाँ पे? कहाँ जाएगा? एनसीएलटी पे जाएगा। एनसीएलटी में जाएगा। पता है क्यों बेटा? कि इंडिया को we have to take some step to allow the matters of dispute to be resolved faster, to resolve faster and to resolve it faster। हमने क्या कर दिया? हमने कंपनी एक्ट के खुद का अलग कोड बना दिया कि एनसीए कंपनीज एक्ट के वायदर्स के लिए कौन सा कोड रहेगा? स्पेशल कोड। इसका नाम क्या है? एनसीएलटी। मतलब आज तक यू डोंट हैव टू गो टू लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नहीं, जंप अप डायरेक्टली टू एनसीएलटी। यही आपका कोड है, ओनली फॉर कंपनीज एंड ओनली फॉर आरओसी मैटर्स। इससे क्या होगा हर्ष? बाकी केसेस यहाँ पे आएंगे नहीं ना, तो दिस विल गिव हिम मोर टाइम एंड टू रेड आउट द मैटर फास्टर। डू यू एग्री? यस सर। जस्ट टू एफिशिएंट। अभी इसके बाद क्या आएगा? अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ ना, उसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर क्या है? एनसीएलटी। क्या है? एनसीएलटी मतलब एपेलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। एपेलेट उसमें क्या होता है कि जो अपील में जाना है, अपील में, तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? एनसीएलटी में जाना पड़ेगा। उसके बाद हर्ष क्या बचता है? खाली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। क्या बचता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ 2 ही चीजें बचती है बाद में। नॉर्मली वो क्या रहता है? खाली सुप्रीम कोर्ट फॉर द मैटर्स। मतलब सर आपका कहना ये है ना कि हम लोग एनसीए को क्या मानेंगे? विल बी मेकिंग अ सुप्रीम अथॉरिटी फॉर कंपनीज एक्ट। सुप्रीमो वो बाप है ये सब का। सर वो कहाँ पे है? वो भी बाजू में ही है, मैं आपको दिखाऊं। आरओसी में जब गया था लास्ट टाइम, तुम देखोगे तुम्हारा अरमान खत्म हो जाए। एनसीएलटी मुंबई, ये रहा आपका एनसीएलटी का वेबसाइट, नेशनल कंपनी लॉ tribunal.gov.in। सब चीजें आपको मिलेगी इसके ऊपर, हर एक केसेस। आपके हर एक के बेंचेस कहाँ कहाँ बैठते हैं? मुंबई में बैठता है। हाँ सर बैठते हैं ना मुंबई में। ओपन नहीं हो रहा है। एनसीएलटी मुंबई जो है ना, यहाँ पे एड्रेस इनका आ नहीं रहा है, बट एनसीएलटी मुंबई भी मरीन ड्राइव के आरओसी के 5 मिनट दूरी पे है। मैं गया हूँ, पर आपको पता चलेगा। पता है क्या? इफ यू गो टू आरओसी ना, इट्स अ गवर्नमेंट ऑफिस। गवर्नमेंट ऑफिस एकदम घिसा पिटा कारोबार। वो लोग जूने पंखे घूमते रहते हैं, फाइल्स के फाइल्स पड़ी हुई मट्टी की तरह, कोई भाव नहीं देगा, उधर जाओ भाड़ में जाओ, ऐसा सिचुएशन। If you go to NCLT, it's a professional, completely professional people, all educated, IRS, IAS वाले लोग, सब educated. And once you go there, you'll see it's a corporate office. How can you help you, sir? So what's the matter? This is the matter. Okay. To do one thing, just send a mail to the same and they'll reply immediately in 24 hours. इतने efficient reply करेंगे, क्या पता साला एक कंपनी है कि गवर्नमेंट है।
इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब जो अलग अलग फेसेट हो चुके हैं, एक आरओसी जो कुछ भी चलता है उधर, और एनसीएलटी जो एकदम ही प्रोफेशनली मैनेज होता है, एकदम प्रोफेशनल मैनेज होता है। तो एनसीएलटी इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द कंट्री टुडे। इससे क्या होता है ना, चोरी जल्दी पकड़ने होने के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, चोर वहीं पे पकड़े जाते हैं। एनीवेज, ये एनसीएलटी क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी अंडरस्टूड हियर इज लास्ट टू थिंग्स गाइस। एक है there are some terms connected with voting. वोटिंग है ना, दो प्रकार की होती है। एक होता है बाय शो ऑफ हैंड। बाय व्हाट? शो ऑफ हैंड्स। मैंने पूछा कि कितने बच्चों को कहाँ पिकनिक पे जाना है, कैन को लोनावाला ऑन ट्यूसडे, और आपको पूछा और आपने क्या किया, जस्ट रेज योर हैंड एवरीवन इफ यू वांट रेडी फॉर लोनावाला ऑन ट्यूसडे, प्लीज रेज योर हैंड। सब लोग लोनावाला ट्यूसडे को, एंड पीपल स्टार्ट रेजिंग द हैंड। इसे क्या कहते हैं पता है हम लोग? वोटिंग बाय डैश। देखो आ गया वोटिंग, 9 लोगों ने 10 लोगों ने वोट किया है हाँ बोल के, 20 लोगों ने वोट नहीं किया है, मतलब 30 में से 20 ने मना कर दिया। डू यू एग्री? चलो अभी बढ़ते गए वोट्स 12-15। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, नॉर्मली व्हेन यू वोट बाय शो ऑफ हैंड्स, हाउ मेनी हैंड्स कैन यू शो? 1। मतलब इवन इफ यू हैव मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, हर्ष मेवाड़ा, और मैं इसको ऐड सॉफ्टवेयर ऐड कर देता हूँ। कैन यू सी me and हर्ष टुगेदर? Yes, sir. मान लीजिए मैं मुकेश भाई अंबानी और ये हर्ष मेवाड़ा, ये मुकेश भाई और ये हर्ष मेवाड़ा, हम दोनों बाजू बाजू बैठे एजीएम में। कहाँ बैठे? बाजू बाजू में। हर्ष आ गया, कितने से लेके आ गया बताए? 7। he has bought only 1 share. How many shares? 1 share. and मुकेश अंबानी 60, मान लीजिए 65 करोड़ शेयर्स, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे याद नहीं कितने हैं। दोनों बाजू बाजू में। हर्ष सुबह जल्दी आ गया, 6 बजे में आ गया एजीएम हॉल में, हाँ मौका मिला बैठने को बाजू में। अब पहला पार्ट शुरू हुआ। कंपनी वांट्स टू रीअपॉइंट मुकेश अंबानी एज द एमडी ऑफ द कंपनी। हेलो, वोटिंग की बात हुई, हाथ ऊपर करो जिसको मना करना है। हर्ष ने हाथ ऊपर किया कि मुझे अंबानी नहीं चाहिए। मुकेश भाई को बोला हाथ ऊपर करो जिसको जो आर रेडी फॉर इट। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, मुकेश भाई ने भी एक हाथ ऊपर किया और हर्ष ने भी एक, जो इक्वल शेयर मिला, इक्वल वोटिंग, एक सो ये तो चीटिंग हो रहा है। उसके पास 64 करोड़ शेयर, उसको 1 वोट, और तुम्हारे पास 1 ही शेयर और 1 वोट, ये क्या फालतूगिरी है? तो शो ऑफ हैंड्स में क्या होता है बेटा? 1 मेंबर 1 वोट इररिस्पेक्टिव नंबर ऑफ शेयर दे हेल्ड। शो ऑफ हैंड में क्या होता है अक्षत? 1 मेंबर 1 वोट। मुकेश भाई हार सकते हैं इसके सामने अगर बाकी 5 लोगों ने मस्ती कर दिया तो। डू यू एग्री? पता है क्यों? क्योंकि हर मेंबर को सिर्फ कितने वोट है अक्षर? सिंगल। लेकिन मुकेश भाई ने ऐसा आलस किया, क्या बकवास करे तुम लोग, मुझे हटा दिया सब मिलके। कौन है तुम लोग? चिंटू पिंटू? तो सब नीचे से, हम कांजली से आए, सब 10 शेयर ले रहे थे आपके कंपनी के, आपको हटाने के लिए। अच्छा, तो भाई ने क्या बोला? मुकेश भाई बोला मने पोल जोए छे। શું જોવે છે? मुझे पोल चाहिए। स्टेप नंबर 2, if you don't agree with the voting of show of hands beta, you can go for dash poll. And poll में क्या पोल खुलती है? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ वोट्स। पोल में क्या पोल खुलती है? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ वोट्स। अब आओ लोग, तुम्हारे पास कितने शेयर बताओ? 10, 20, 25, 40, 50, 70, 80, 90, 108 शेयर हमारे पास। सर मेरे पास कितने हैं? 64 करोड़। अभी आओ, मुझे निकालने वाले आए थे तुम लोग। मतलब नॉर्मली व्हाट इज प्रेफरेबल? शो ऑफ हैंड्स टू मेक द मैटर सिंपल, फटाफट हो जाता है। अगर किसी मस्ती किया तो क्या चालू हो जाएगा? फिर चालू होगा पोल, पोल में फूलेगी पोल। अभी क्लियर? यस। जेन्युइनली जो इन्वॉल्व है ना वही जीत पाएगा, बाकी कोई जीत पाएगा नहीं। तो 2 टाइप्स ऑफ वोट होते हैं, पोल एंड शो ऑफ हैंड्स। दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू। लास्ट पार्ट फॉर द डे गाइस, ठीक है? कितनी खुशी होती है ना लास्ट पार्ट बोलने में, बच्चे लोगों को। हाई लास्ट पार्ट, चलो आया, आज का दिन समाप्त, एक दिन इंटर से निकल गया। ऐसे बहुत दिनों बाकी है, राइट? चलो ऐसे 300 दिन बाकी, दिन बाकी ऐसे आपको 300 दिन, उसमें एक दिन हो गया 299 टू गो, ठीक है? आगे जाते हैं हम लोग। मॉर्टगेज, प्लेज एंड हाइपोथिकेशन। मॉर्टगेज 3 बोल दिया, एक ही है मेरे पास भाई। मॉर्टगेज, प्लेज एंड हाइपोथिकेशन में क्या फर्क है, उसका मीनिंग क्या है, वो समझते हैं, क्लास को एंड करते हैं। एनीवन?
सृष्टि, कशिश, आनंद, समृद्धि, ऐश्वर्या, ऋषभ वीडियो ऑन रखो बेटा, अभी भी तभी खाना ही खा रहा है। Come on. What do you mean by mortgage? What do तो you mean? मॉर्गेज मतलब बेसिकली जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, गिरवी रखना, लाइक जस्ट फॉर if you're taking a loan against something, so I keep my house as mortgage. So if I'm not unable to, pay my loan, then my house will be taken by the bank. So that's mortgage basically. ठीक है. What do you mean by pledge and hypothecation against the same? I think Jyoti का आंसर is Jyoti, right? Jyoti को पता है. No. Sir, pledge means bailment of goods. शाबाश, जीती रहो, लेकिन बिलमेंट ऑफ गुड्स ट्रू, बट समझ में नहीं आएगा लोगों को कि बिलमेंट ऑफ गुड्स से कहाँ कनेक्ट करने बैठे सर अभी. वेरी गुड आंसर. एनीवन एल्स? प्लेज में ओनरशिप नहीं होती. देखो आपका टाइम ज्यादा जाएगा अगर मैं आपको पूछूंगा. अक्षत शाह, मोड़ू खोलो आवे. Yes, sir. बोलो. What, sir? मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, प्लेज, क्या फर्क है, क्या मीनिंग है? Sir, mortgage is when we mortgage some property and we get some amount for the same. In pledging, we can pledge the shares, pledge goods. And hypothecation, I guess, is some hypothetical assumption for the valuation of something. हमारे पास अनर्थ करने पावर है ना, हमारे पास अनर्थ. हम कानून बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं. एग्जाम के अंदर नया कानून बना सकते हैं और निकाल भी सकते हैं. राइट साक्षी? सो वी आर द क्रिएटर्स ऑफ लॉ. वी कैन मेक द लॉ instantly in 3 hours of the exams. But good try Akshat. अच्छा आंसर है हाफ. Mortgage applies to immovable property only. Mortgage possession is with borrower of money only. It does not go with the lender. Lender का possession होता नहीं है. The borrower of the money keep possession with himself. जैसे आपने हाउसिंग लोन लिया, घर आपके पास ही रहता है ना, घर उनका जाता नहीं. Do you agree? Yes, नंबर 2, sir. पेपर्स घर के जाते हैं उनके पास. Do you agree? नंबर 2, pledge applies to which goods? Movable goods. Example, gold. मुथूट गोल्ड लोन, HDFC गोल्ड लोन, घर पे पड़ा हो सोना, कब का है कोरोना वाला कॉन्सेप्ट. इसके अंदर possession of goods is with lender. If you take a HDFC gold loan, then you take a loan, then the gold is with whom? The lender. That's the HDFC. Do you agree? Yes, sir. That's pledge for Yes, you. sir. Number 3, hypothecation. In hypothecation of goods, ये कहता है it applies to which goods again? Movable. Movable goods only. But possession is with borrower. Example, मैंने उबर कार ड्राइव करने के लिए मैंने क्या लिया? कार लोन. अब हर्ष मेवाड़ा ने उबर ड्राइव करने के लिए कार लोन लिया, तो अभी कार लोन लिया है मूवेबल गुड्स पे. लोन के सामने कार को अटैच किया होगा एज अ सिक्योरिटी. लेकिन कार किसका रहेगी? बैंक के पास है, तेरे पास? मेरे पास. नहीं तो मतलब क्या लेके सर, तेरे पास ही रहनी है. तो मतलब हाइपोथिकेशन में मूवेबल गुड्स किसके नाम पे होते हैं? बैंक के नाम पे होते हैं, हाइपोथिकेट होते हैं. लेकिन
आप ऐसे बोलो, आप उसको यूज भी मतलब बेटा मनी गिवन बाय whom? The bank. But asset used by whom? The borrower. तब जाके तो EMI पे कर पाएगा यूज करके एसेट को. डू यू एग्री? Yes, sir. तो ये 3 टर्म्स है बेटा जो लेंडिंग में यूज होते हैं. लोन लेने पे ना 3 टर्म यूज होंगे कभी भी. मॉर्गेज किया है प्रॉपर्टी को, प्लेज किया है गुड्स को, या हाइपोथिकेट किया है गुड्स को. हाइपोथिकेशन अगर हुआ है तो आपके बोरोवर के पास गुड्स रहेगा, प्लेज है तो लेंडर के पास गुड्स रहेगा, और मॉर्गेज है तो वापस बोरोवर के पास रहेगा. मॉर्गेज इम्पोर्ट प्रॉपर्टीज के लिए होता है, प्लेज मूवेबल के लिए होता है, और हाइपोथिकेशन भी मूवेबल के लिए ही होता है. आर वी क्लियर विद द सेम? Yes, sir. इसी के साथ हमने हर एक एलिमेंट के कॉमन पॉइंटर्स जो मुझे आपको कंसिडर करने थे बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग यू द कंपनीज एक्ट फिनिश कर दिए हैं. ठीक है, इसको आपको वापस कहीं ना कहीं पढ़ते बैच में आते रहेगा. हमें ध्यान था कि हमें इसको कंपेयर करके एक बार देख लें. ठीक है, आई सी यू नेक्स्ट क्लास. इफ यू लाइक द सेशन, एटलीस्ट आपके फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक कहीं ज्वाइन नहीं किया उनसे बात करते रहना. सी यू, टाटा, बाय बाय, आओ जो नेक्स्ट क्लास. Bye, sir. Thank you. Thank you, Thank you, sir. 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 Thank you, sir.